Crazy, bro. Yeah, bro. So Oppenheimer, I did the Barbenheimer, और फिर वापस अभी ये वीक Oppenheimer हुआ. I'm still thinking about the story. Sorry. Man. तो अभी ये वीक It's very sitcom-y, whatever वेरी happens. सिटकॉम ही डूड, मेरे को समझ ही नहीं It's आ like रहा I है. can picture a comedy version of this. Like every show can have they must have had a scene like this without going into हाँ, detail. it is a very sitcomish scene. But yeah. बट हाँ तो हाँ, एंड दिस क्या बोल रहा वीक था तू? मतलब वापस बार्बेनहाइमर एंड मिशन इम्पॉसिबल. आई फील बैड फॉर मिशन इम्पॉसिबल का टाइमिंग डूड. लाइक इट्स No, सो nobody अंडर द रेडार. expected this to happen. That's the thing. हाँ, एंड पूरा आईमैक्स स्क्रीन ही हाईजैक हो गया उसका. वो भी for a fucking historical black and white year. वो तेरा पॉइंट बहुत ही अच्छा था. एंड आई फील दैट कि फॉर अ मूवी दैट्स 3 hour लॉन्ग एंड मोस्टली टॉकिंग, नो एक्शन सीक्वेंसेस टेक्निकली, actually no action sequences really, Yeah, and nothing. for that to be a blockbuster summer hit that Yeah. gets people in the theater, it's a big achievement in and Yeah. of itself. But I kind of hate how much they pushed. We're talking about Oppenheimer, by the way, because I'm not going. But I kind of hate how much they pushed the IMAX thing, because what happened here is my friends and I got really obsessed with like 70 and stuff. And there's only limited theaters in the US for 70 there's like 30 or 40 theaters. So Right. we had a plan early in July to go. The nearest one is in Pennsylvania, which is like a 2-3 hour drive. So हमने ऐसे mental plan बनाया था कि we'll book tickets for the 70 Oppenheimer Wow. before the movie came out. We'll drive हाँ. 2 hours, we'll watch the movie and come back. And we didn't do that, and I'm so glad we didn't do that, because I can't, like, it's kind of unfair to push this movie on IMAX because it's completely unnecessary. There is nothing that IMAX will add to this apart from a theatrical experience, which I Right. think you disagree. Yeah, Tell I've me seen or it no. twice in IMAX only, तो मेरे को पता Bro, नहीं है. क्या है इसमें? It's bro पूरा aspect ratio बड़ा हो जाता है Like, ना. in the sense कि IMAX makes everything slightly better, ठीक है. एंड द But साउंड इज वेरी विसरल. मतलब वो मैंने एक्चुअली उसका प्लेसमेंट ऑफ सीट भी मैंने सेंटर रखा था. मतलब सेंटर इन हॉरिजॉन्टल एंड सेंटर इन वर्टिकल आल्सो. हाँ, I mean, I get it, but you have to factor in that IMAX costs more, and if you have to travel more, is it हाँ, worth obviously it it's more than different. the normal theater? I agree that they should be watched in theaters only. Everything should be watched in theaters. But मैं जनरल ऑडियंस को कभी भी फोर्स नहीं करूंगा आईमैक्स पे जाने के लिए. मैं उन लोगों को ही फोर्स बोलूंगा, रेकमेंड करूंगा जो एक्चुअली ये सारी छोटी छोटी चीजों को लेके नर्ड आउट होते हैं. राइट. but the movie is not good enough for me. Yeah, sure. I mean, that's a very fair उसमें तो तू मतलब like you don't watch any blockbuster in IMAX if it's not good enough. Like that argument Yeah. falls. मतलब अगर मैं बोलूंगा कि like let's say you hate Captain America Civil War, और मैं बोलूंगा कि IMAX में देख वो क्या blockbuster feel है whatever blah blah blah, but if you don't like the movie तो फिर फायदा ही क्या IMAX का. But yeah, I get it. Inception is more ऐसे IMAX worthy spectacle देखने मिल रहा है कुछ. Yeah. Exactly. Then उसका क्या this मैं black and white टोपी पहन रहा है वो देखेगा IMAX. वो क्या टोपी है bro? क्या टोपी है bro? Like, क्या करेगा मैं? Justified ही नहीं है. Even I was discussing with a friend only कि Nolan का IMAX का fetish. And you know what the problem is? Because he is such an pro IMAX guy ना. वो Dark Knight के से सब IMAX पे शूट करता है. At least partially movies IMAX cameras पे शूट करता है. But if he's shooting movies meant to be seen on IMAX, 99% of the world doesn't see them on IMAX. They see it in theaters and then at home and stuff. So in essence, he's giving everyone the inferior experience by default. To his vision, yeah. उसके vision का experience सिर्फ आपको first initial few months में ही मिलेगा. Bro, most people haven't even been to IMAX once. Like, I don't know, maybe they have. Maybe 10 years ago they had. नहीं, you are very accurate on this. यहाँ पे मुझे लोगों को Avatar Way of Water के टाइम पे IMAX में first time दिखाया हूँ. Literally. कि please इसको IMAX में देखते हैं. And they're like, क्या फर्क है? Avatar का it's more justified. But उन्होंने देखा and they loved it, but they were still like, यार काफी महंगा था फिर भी. But they loved it. ऐसे नहीं था. और वो Avatar में वो ऐसे सोच रहे हैं. तो तू सोच कि ओपेनहाइमर में तो चिढ़ ही जाएगा इंसान. I get what you mean. Bro, you have to factor in money, right? मतलब it's not like a Bro, मैं तो बेबी ड्राइवर भी IMAX में जाके देखा हूँ. Bro, तो मतलब That's actually a better choice to see in IMAX. Okay. है justified.
IMAX में है. No, but you have to factor in money also. मतलब कि ऐसा नहीं कि IMAX in theater like directly replaceable side by side. Like IMAX का ticket इंडिया में भी expensive रहेगा. बहुत कितना था significantly तेरा? bro, twice या thrice. Oppenheimer का कितना था? 12 800-900 रहेगा easily. Bro, Bro, paying Avatar 900 for any movie is like मेरा Avatar मतलब. Way of Water 1200 था bro. Oh man, this hurts because I have grown up watching movies from 90-100 bucks. मैं morning shows को जाके Bro 90 bucks में देख के आता था. And सेम ब्रो सेम, वो मंडे मॉर्निंग शोज होते थे जो 90 रुपीज, 100 the रुपए इतने ही होते हाँ थे. bro, as long as it was like मतलब as long as it was a multiplex theater, it was like a huge improvement. Like the like single plex, Alka Rahul, उससे City Pride, E Square and all that was better. But that was in itself a ये. But उसके आके अभी inflation इतना ज़्यादा आ गया है movie prices पे. Dude, I remember the time where E Square Screen 5 was the shit. मतलब Bro, it वो is मिल the गया ना. shit. It is. इसको मैं shut डार्क नाइट down ना. राइजेस उसमें देखा है, भाग मिल्खा भाग उसमें देखा है. It Yeah, is Dark Knight has amazing. I've seen in Skin 5. Amazing bro, amazing experience. Yeah, Till date, the best movie experience technically I can imagine. I know right. और उसका थिएटर इतना बड़ा है ना, like ऑडियंस का पूरा फील आता है उसमें. हाँ bro, Like ऐसे the wide seating is bro. huge, I don't very know why wide. more theaters aren't like that. Like why I are know people making right. it like that? वो एक screen है that I remember distinctly separate from other Yeah, screens. 100%. Why did E Square shut down? I think so. शायद. I don't know. I'm I not think I sure. remember. Why do I feel like it shut down? You cannot minimize zoom while you're at. But yeah, coming back to Oppenheimer, so I caught, मतलब मैं ऐसे कुछ ये नहीं बोल रहा, I just caught a lot of things on the second watch. छोटी छोटी चीजें obviously, but Sorry, E Square. हाँ बोल. There's just a E Square hotel too. How did E Square हाँ, shut E down? Square Bro? hotel है. हाँ, I I know vaguely right. remember this because I don't know Right, what right, happened. right. Even I vaguely remember it got shut. Yeah, coming back to Oppenheimer. Yeah, That's yeah, what we're bro. here to discuss. उसका जो I think उसने ना डिसाइड ही कर लिया था, like the movie. मतलब याद है एक बार रात में आइंस्टाइन आता है और बोलता है like you don't have to do this for your country if she हाँ doesn't हाँ pay you back वगैरह वगैरह, एंड वो हाँ बोलता है I have my reasons हाँ वगैरह. तो वही प्रोमिथियन कोड जो स्टार्ट ऑफ मूवी में हाँ है, हाँ like literally he was tortured for his eternity. Like हाँ. he obviously thinks that he should go through this arduous trial, so because he deserves that torture, right? वो Right. पूरा, that's why he doesn't speak up, doesn't do anything against it or try. वो literally उसका हाथ भी मिला देता है, जिसमें एमिली ब्लंट हाँ बहुत चिढ़ हाँ जाती है, हाँ हाँ. because he was in his mind, he was thinking that I deserve this Yeah, to for what happen I've to done. me, to हाँ, Yeah, for what I've done वगैरह. तो वो लिटरली वो प्रोमिथियन लिंक है. लाइक cause I was always ये था कि why is he not fighting, why is he not getting a lawyer, why is he not blah 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 blah, first yeah, time जब मैंने देखा था तो. yeah. But this time it was like yes, he wants to do this, he Right. wants shit, he wants his image to be tainted, और गिल्ट उसका आया था. एंड आई वाज, मैंने एक ऐसा इंटरव्यू भी देखा क्रिस्टोफर नोलन का ही, ऐसे डिस्कशन ऑफ दिस फिल्म एंड एवरीथिंग, जिसमें से उसको क्वेश्चन ऐसे पूछा था, प्रोफेसर के साथ ही एक डिस्कशन है, आई थिंक इट्स ऑन यूट्यूब और समथिंग, कि व्हाई डिड यू लाइक मेक वन ऐसे ब्लैक एंड वो व्हाइट एंड ब्रायन वन कॉक्स के कलर. साथ था क्या? आई डोंट नो. द क्लीन शेवन बॉयकट क्या होता नहीं है? नहीं वो तो नहीं बॉयकट ही रहेगा. अच्छा नहीं, कोई नहीं नहीं. नहीं, हाँ, continue. डबल था, थोड़ा लंबे बाल थे. हाँ हाँ तो he was asking why did you choose to like make one ऐसे black and white और color, or was that a predetermined thing that you wanted to do, और ये later on movie के बाद, स्क्रिप्ट होने के बाद आपने ऐसे वैसे किया. एंड ही वाज लाइक कि he like so the color वाला part, his explanation was कि the color part is the subjective experience of Oppenheimer हाँ हाँ. himself, That he and the told. black and Correct. white part is the Louis Strauss का objective experience, Correct. how he sees is objectively, and that was a subjective thing that he was Correct. showing by color. तो जब भी Correct. उसने फर्स्ट टाइम वो आइंस्टाइन और पॉन्ड वाला सीन दिखाया था, ब्लैक एंड व्हाइट में था, जो वो थ्रू लुइस स्ट्रॉस की सब्जेक्टिव लेंस से था, कि ही सॉर्ड मी ऑन आइंस्टाइन और व्हाटएवर वगैरह. एंड फाइनल सीन जो है वो कलर में था, वो दैट वाज ओपेनहाइमर सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ एवरीथिंग वगैरह वगैरह. बट मैं छोटी छोटी चीज बता रहा हूँ, जैसे डू यू रिमेम्बर दैट सीन
वेर ही इज लुकिंग, वो हाइड्रोजन बॉम्ब के बारे में बात कर रहे हैं, सुपर बॉम्ब के हाँ बारे में टेबल हाँ पे, हाँ एंड ही इज लुकिंग एट द मैप एंड ऐसे वो सर्कल्स ऐसे बन रहे हैं. हाँ रिमेंबर आई टोल्ड यू आई वांट नोटिस अ फ्यू थिंग्स दिस टाइम के वो फुटस्टेप्स हाँ कब आते हैं. हाँ वो हाँ जो इमोशनल प्राइमिंग की है ना उसने, हाँ वो हाँ फुटस्टेप्स की. हाँ इट्स लाइक अ हाँ प्राइमर. बॉम्ब हाँ डेटोनेशन में एक हाँ प्राइमर होता है, फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं. तो बेसिकली मेरा बहुत ऐसे स्क्रीन प्ले को लाइक अ बॉम्ब में बहुत देख रहा था ये मूवी में. राइट लाइक एवरी डेकेड के सीन्स आर स्प्लिट इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स व्हिच स्लैम इनटू वन अनदर. हम्म क्योंकि लिटरली वो एक सेंटेंस एंड होके जैसे सीन कट होगा ना हाँ टू अनदर डेकेड, इट विल बी वेरी डायरेक्टली और समवे रिलेटेड टू दैट सेंटेंस और दैट राइट सीन दैट हैपेंड. राइट तो तो ऐसे लग रहा था कि वो चेन रिएक्शन ही दिखा रहा है, वेर राइट द पार्टिकल्स आर स्लैमिंग इनटू वन अनदर. ठीक है. और ये एक प्राइमर है जो वो मेरे लिए पर्सनल बॉम्ब था जब मैं रोया. ठीक है. तो वो जो था ना फुटस्टेप्स वाला, तो वो तभी भी आता है सर्कुलर, जो वो देख रहा होता है, इमेजिन कर रहा होता है ब्लास्ट ऑन रशिया वगैरह जो भी है मैप पे देख के. राइट एंड द फर्स्ट टाइम वो फुटस्टेप्स आते हैं वो प्रोमीथियस के कोर्ट पे ही आ जाते हैं. फायर है पूरा. और ओ ये तभी फुटस्टेप्स फुटस्टेप्स, है क्या? वो फुटस्टेप्स चल रहे हैं ब्रो मूवी के ओपनिंग में. मैं हाँ वाज लाइक व्हाट द फक, ऐसे हो गया था मैं. हाँ वो प्रोमीथियन के कोर्ट पे वो लिटरली फुटस्टेप्स चल रहे हैं एंड टॉर्चर्ड हाँ फॉर एटर्निटी वगैरह. ठीक है. राइट तो आई वाज लाइक वेरी इनटू इट. और वो प्रोमीथियन का कोड और फायर जैसे ही आता है, उसका फर्स्ट शॉट मूवी का जो है हम्म टेक्निकली, वो है वो ऐसे रेन ड्रॉप्स देख रहा है यंग हाँ ओपेनहाइमर, पानी को देख रहा होता है और उसमें से करेक्ट रिपल्स हो रहे होते हैं. और करेक्ट वो लिटरली करेक्ट वो सीन उस सीन से रिलेटेड है. राइट लाइक काइंड ऑफ वो विजन्स जो राइट फाइनली उसके न्यूक्लियर विजन्स आते हैं. अभी राइट लिटरली उसको वो विजन्स आ रहे थे काइंड ऑफ. वो फोर करेक्ट शैडो किया है एक तरह राइट से, क्या मतलब जो भी उसकी टेक्निक है. एंड अनदर थिंग आई नोटिस वाज, मतलब ओपेनहाइमर को लिटरली बहुत अच्छा क्रॉस क्वेश्चनिंग किया एक पॉइंट पे. वही उसके एईसी ट्रायल में ही, व्हेन वो देख जब सब लाइट्स वाइट्स होने इफेक्ट्स आने लग जाते हैं, जब उस लास्ट में व्हेन रॉजर रॉब उसको, जो वो अटर्नी होता है जो बैठा होता है जो बार ओके बार, वो वाला सीन हाँ हाँ करेक्ट हाँ, तो तब वो उसको देख क्वेश्चन करता है कि वुड यू हैव मेड द बॉम्ब इफ इट वाज हाइड्रोजन बॉम्ब, वुड यू हैव राइट मेड लाइक व्हाट चेंज योर माइंड, व्हाट चेंज ये राइट वो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करता है, हम्म इंसाइजिव एकदम. हम्म लिटरली ही इज आल्सो स्टम्प्ड बिकॉज इवन ही डजंट नो व्हाई ही डिड व्हाट ही डिड, राइट. हम्म वो उसके लिए भी आंसर इतना क्लियर नहीं है. वो टाइम पे ही रैशनलाइज्ड इट बाय सेइंग कि इफ द नाजीज डू इट, वी कैन राइट ट्रस्ट द इट वाज अ नाजीज विद द रेस बॉम्ब. इट वाजंट जस्ट एन इन्वेंशन दे तो हैड टू हमें तो मेक इट करना ही है. राइट एंड दैट वाज गुड इनफ फॉर हिम टू कीप गोइंग. उसने उसको और अच्छे से सोचा नहीं इम्प्लीकेशंस को, क्योंकि वो बहुत क्लियर कट हो गया था कि नहीं, उन लोग को तो बनाने देना ही नहीं है. इवन दो ही राइट न्यू, ही थॉट इट वाज जूइश साइंस, ही न्यू दे हैड अ 18 मंथ हेड स्टार्ट, बट फिर भी रिजर्वेशंस थे, क्योंकि क्या पता वहां के जर्मन साइंटिस्ट ज्यादा, हाइजेनबर्ग वगैरह बहुत एक्सपर्ट हाइजेनबर्ग है, तो दे कैन मेक इट. एंड इफ दे राइट डू मेक इट, लग गए हमारे. तो राइट दैट वाज गुड इनफ फॉर एवरीवन टू कीप गोइंग विदाउट क्वेश्चनिंग मच वगैरह. बट वो उसको सही क्वेश्चंस करता है कि अगर वो हाइड्रोजन भी होता तो भी तू करता, ये भी होता तो भी तू करता, लाइक व्हाई द सडन चेंज ऑफ हार्ट. राइट तो इट्स लाइक ऐसे लग you're रहा था कि protesting the hydrogen bomb and you want the open treaty with Russia but you हाँ, did the previous one so why the flip पे तो तूने पूरा बॉम्ब बनाया, अपना नाम कमाया, सब किया, फेम चेजिंग किया इन अ वे, right काइंड ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन इन द वर्ल्ड, टाइम right मैगजीन, right राइट. और तो मतलब वो चीज मुझे ऐसे लगा कि लाइक, सो ओपेनहाइमर था उस चीज में, एरोगेंस था उसका, क्योंकि तू उसके दो सिनेरियोस देखेगा ना जिसमें उसका एरोगेंस मुझे दिखा था. एक तो था जब वो शुरू में जीन टैटलॉक के साथ बैठा होता है, उसको बोल रहा होता है कि आई एम मैरिंग एमिली ब्लंट, और वो रो रही hmm होती है, दिस इज अ डोर क्लोजिंग, hmm फर्स्ट टाइम. तो hmm वो तब वो उसको बोलता है कि ब्रिलियंस मेक्स अप अ लॉट फॉर इट, क्योंकि वो मैरिड hmm है बट बच्चा आ गया है, लेकिन दे आर hmm गोना डिवोर्स, शी इज गोना डिवोर्स हिम एंड देन वी गोना मैरी hmm हर बिफोर इट सेट्स, बिफोर इट hmm शोज. hmm तो वो उसको बोलते हैं डोंट आइसोलेट द पीपल हु, द ओनली पीपल हु अंडरस्टैंड यू, hmm वगैरह वगैरह, उसको बोल सही चीजें बोलती है वो. एंड तब वो hmm एरोगेंस अपना थोड़ा दिखाता है, ब्रिलियंस मेक्स अप फॉर इट, ऐसे. hmm और फिर जब ग्रोव्स भी उसके पास आता है, hmm अभी भी वो ये चीज बोलता है कि वो बताता है बहुत सारे एडजेक्टिव्स दैट आई हर्ड दिस दिस इज, बोलता है ब्रिलियंट, ब्रिलियंट वगैरह, नो मतलब वेयर इज ब्रिलियंस इन इट, ऐसे वो हिंट hmm करता है. और उसको थोड़ा ऐसे, ये तो रहता ही अपने उस चीज के लिए, राइट. तो उसने hmm उस चीज में वो चेज किया
बाय द एंड ही वाज चेजिंग, उसको पता था एटमॉस्फेयर तक लाइट अप हो सकता है, ही वाज 100% श्योर कि एटमॉस्फेयर भी हो सकता है, तो भी उसने वो चेज किया एंड इट हैपेंड। एंड जैसे ही इट हैपेंड, वो उसने वो व्हाइट लाइट देखी, जब फर्स्ट न्यूक्लियर रेडिएशन की व्हाइट लाइट उसके वो चश्मे के थ्रू, आई थिंक इट हिट हिम वेरी बैड कि व्हाट हैव आई डन। मतलब अब तक वो पूरे वो ट्रांस में था, वेर ही रैशनलाइज्ड कि ओके ओके नाजीज नाजीज नहीं करने चाहिए, एंड द मोमेंट इट एक्चुअली इम्प्लोडेड, मतलब एक्सप्लोडेड जो भी, उसको वो पूरा रियलाइजेशन हुआ कि क्या हुआ। एंड आफ्टर मैथ लिटरली फिर उसको बताते हैं ना, वो ही इज मेकिंग ट्रीटीज, वो अपने पावर यूज करने लग जाता है टू मेक पॉलिसीज अगेंस्ट इट एंड एवरीथिंग। तो ये उसका बिहेवियर पैटर्न है, वेर ही चेजेस अ फीलिंग एन इम्पल्स एंड देन ही रियलाइजेज इट, एंड देन वो ट्राई करता है डैमेज कंट्रोल का। और ये पूरे सिनेरियो का तू ओपनिंग में जाएगा ना, ओपनिंग सीन्स में एक शॉर्ट वे में बताया है कि वो एप्पल को डालता है इम्पल्स में, एप्पल के अंदर, और फिर तुरंत उसको थोड़े टाइम बाद वो ट्रांस से बाहर आने के बाद याद आता है कि व्हाट द फक आई डिड, और वो भाग के जाता है डैमेज कंट्रोल को। तो वो उसके अर्ली डेज का कनेक्शन मुझे अच्छा लगा, ऐसे फिट होते हुए, लाइक दिस ऑल मी। मैं ऐसे नहीं बोला नोलन ने इसलिए डाला वगैरह, बट वो मेरे लिए ऐसे था कि ओके कंबाइन हो रही है, मतलब ये चीज क्यों दिखाई है एप्पल वाली, या इसका क्या पॉइंट है, तो मेरे दिमाग में वो वैसे फिट हुई कि ही इज समवन हु गोज इन विथ इम्पल्स थोड़ा, एंड देन ही ऐसे पुशेस बैक वगैरह, डैमेज कंट्रोल वाली चीज। बट हाँ, और एट द सेम टाइम एक और चीज की ग्रोव्स ने, आई थिंक तूने तेरे रिव्यू में पढ़ा था या मैंने इंडी वायर, नहीं तेरे में पढ़ा था शायद, कि वो हाँ ग्रोव्स ने उसको वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट एंड वेरी गुड पॉइंट, ये मैं फर्स्ट मूवी के बाद सोच ही रहा था कि ये क्या है, ये क्यों, मतलब सोच नहीं रहा था, आई नेवर क्वेश्चनड इट, बट आई हैड अ फीलिंग कि वो गलत है, कुछ तो मतलब अनसेड है, कि उससे डेफिनेटली बेटर ऑप्शंस है, बेटर कैंडिडेट्स है। बट एक सीन मेरे को सेकंड मूवी में आया था, वेर वो याद है ग्रोव ऐसे जोक करता है आई जस्ट गेट हिम किल्ड, वो एक साइंटिस्ट छोड़ देता है तो बोलता है आई जस्ट, तो तब वो रियलाइज करता है कि ग्रोव एमआईटी इंजीनियर है, मतलब उसको बताता है कि आई नो अबाउट यू वगैरह वगैरह, एंड यू डिडंट पिक मी डिस्पाइट माई कम्युनिस्ट कनेक्शन, यू पिक मी बिकॉज ऑफ इट सो दैट यू कैन कंट्रोल मी। हाँ, तो आई थिंक, आई मीन, डजंट दैट आंसर द थिंग व्हाई ही केम टू, आई थिंक लाइक ग्रोव शुरू में उस, बट इवेंचुअली व्हेन ही स्टार्टेड गेटिंग टू नो हिम, दे ग्रू फॉन्ड, मतलब वो उनका एक अलग केमिस्ट्री और बॉन्ड बन गया, लाइक धीरे धीरे ओवर टाइम। बट आई थिंक ग्रोव्स का फर्स्ट इंटेंट जितना कोल्ड था ना, वो जिससे आया था वहां, उसके सबऑर्डिनेट को भी कैसे ट्रीट कर रहा था, इट सीम्ड वेरी कैलकुलेटिव और प्रैग्मेटिक पर्सन था जिसको कंट्रोल चाहिए पूरा का पूरा। मैट डेमन बाय द वे स्टील्स द शो, क्या मैट डेमन सेकंड व्यूइंग पे भी इतना सही था ना, मेरे को ऐसे लग रहा था मतलब उन दोनों का केमिस्ट्री बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, बिकॉज इतने सारे साइंटिस्ट और फिजिसिस्ट चल रहा था, दिस वाज अ फ्रेश माइंड इन ऑल ऑफ दैट। हाँ, फ्रेश एनर्जी था। तो एंड रॉबर्ट डॉनी का भी परफॉर्मेंस, आई लाइक्ड इट मोर दिस द सेकंड टाइम आई सॉ इट। फर्स्ट टाइम आई वाज लाइक वेरी, मतलब मेरे दिमाग में चल रहा था कि रॉबर्ट डॉनी है वो, बट आई कंप्लीटली एग्री विथ यू कि ऐसे कुछ लगता नहीं है कि ही इज रॉबर्ट डॉनी जूनियर आयरन मैन वगैरह, ही इज इन द कैरेक्टर वगैरह, ही इज डूइंग हिज थिंग और व्हाटएवर, बट या। और मेरा एक और चीज था कि तूने एक वो मूवी देखी अभी ये ईयर या नेक्स्ट लास्ट ईयर ही आई है, इंडियन बॉलीवुड मूवी है रॉकेटरी करके? नहीं। इफ यू, अगर तेरे को मैं उसका प्लॉट बताऊंगा ना, तेरे को लगेगा कि ये पर्सन ओपेनहाइमर ही है, बस इंडिया में रहा है, लिटरली उसकी लाइफ। तो वो एक साइंटिस्ट रहता है आईएसआरओ का, जो वो साराभाई, विक्रम साराभाई के अंडर में भी रहता है, ठीक है, एंड ही अचीव्स अ ग्रेट फीट ऑफ मेकिंग सम लिक्विड इंजन, कुछ तो है लिक्विड फ्यूल इंजन, वो बनाने में सक्सेसफुल रहता है फॉर सैटेलाइट्स वगैरह, इंडिया का सैटेलाइट गेम। तो ही डज दैट, वो बाहर जाता है, सब जगह यूएस जाता है, सीखता है, जैसे ओपनहाइमर अपने अर्ली डेज में सीखता है। फिर वो फ्रांस में जाके उनके सारी नॉलेज एक्चुअली लेता है, दैट्स लाइक अ हाई सीन, जहां पे वो पूरी इंडियन टीम कलेक्ट करता है साइंटिस्ट की, जिनको फ्रेंच सिखाता है, सो दैट दे अंडरस्टैंड देयर वर्क और उनका वर्क चुरा पाए हम। बट दे आर गोइंग टू हेल्प द फ्रेंच पीपल, बट एट द सेम टाइम दे आर टेकिंग नोट्स एंड एवरीथिंग, so they gather that info and actually finally pull it off and make an engine
सैटेलाइट के लिए वगैरह. सो तो इसको बहुत फेम मतलब ये मिलता है, और इमीडिएटली हाफिज एडली उसको सीधा क्या बोलते हैं, इंटरोगेशन चालू हो जाता है, लिटरली सिमिलर बट वर्स. टॉर्चर होता है, उसको मारते हैं, पीटते हैं, बोलते हैं कि तूने पाकिस्तान, एलिगेशंस फालतू कि तूने पाकिस्तान को सीक्रेट्स लीक किए इंजन के बारे में वगैरह वगैरह. और पूरी लाइफ उसकी हेल हो जाती है, उसकी फैमिली पे ऐसे, उसके घर पे मोलोटोव कॉकटेल्स फेंके जाते हैं, उसकी वाइफ एकदम साइकोटिक ब्रेक में चली जाती है, इतने शॉक में. बहुत गंदा मतलब टेरिबल कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं उसके. बट इट इज वेरी ईरिली बहुत सिमिलर बीट्स है कि ग्रेट थिंग्स अचीव किया फॉर द कंट्री. ऑब्वियसली उसने ऐसे कुछ नहीं किया जो वर्ल्ड को एंड कर देगा अब, बट हाँ, एंड ही इज टॉर्चर्ड फॉर इट. और फिर एंड में उसको, और उसको एंड में पद्म भूषण मिलता है इंडिया से, और इंडिया रिकॉग्नाइज करती है, सारे सुप्रीम कोर्ट एलिगेशंस हटा देती है, एंड ही इज रिवाइव्ड, हिज इमेज इज क्लीन्ड. So this is a complete true story. दिस इज अ कंप्लीट ट्रू स्टोरी ऑफ अ Right. पर्सन, Right. इंडियन साइंटिस्ट पूरा. Right. तो पूरा डिफेम होके एंड में जब वो बूढ़ा होता है तब उसको पद्म भूषण मिलता है. Right. एंड ये होता है, Finally, redemption. एंड ये पूरी बायोपिक लिनियर है. Right. ठीक है, ये पूरी लिनियर स्टोरी लाइन है. और मैं फर्स्ट हाफ के बाद बोर्ड आउट ऑफ माय माइंड था मूवी में. उसका पूरा Right. टॉर्चर और वो सब एंड वो सब वो सब वो Right. सब, फिर ट्रायल्स और ये सब ये सब ये सब. तो मेरे माइंडसेट में ये था कि दिस इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट. मैंने तो जब मैसेज किया ना, कॉन्सेप्ट बायोपिक है ये, क्योंकि उसने वही बायोपिक, सेम बायोपिक को जिस नोलन नोलन ट्रीटमेंट मिला है जो, हाँ. आई थिंक दैट मेड मी लेस बोर्ड विद थ्रू आउट. क्योंकि ऑब्वियसली एडिटिंग बहुत फाइन है, एडिटिंग एकदम क्रिस्पी है, बट बिकॉज ऑफ दैट कि वो चीज बाद में दिखाना और वो चीज पहले दिखाना, लाइक इट डिडंट जेल वेल विथ मी वो मूवी में. Right. बट वो मूवी में जो तूने बोला ना, वो सारी चीजें काफी अच्छी है. लाइक द एवरी फिजिसिस्ट साइड कैरेक्टर इज गिवन इनफ डेप्थ. Oh, they've talked about the देखो science हर and एक stuff. Whatever I कैरेक्टर, complained about this one. वो सारी चीजें उसमें मिल रही थी मुझे. लाइक एवरी कैरेक्टर वो इज देयर, एवरी कैरेक्टर इज फन एंड डिस्टिंक्ट, यू रिकॉग्नाइज एवरीवन स्ट्रेट. ठीक है, कौन Right. स्लिप अप कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, किसने क्लच कर सकता है कौन. एंड ही वाज द ओवरऑल डायरेक्टर माधवन ऑफ दिस होल Right. प्रोजेक्ट, लाइक Wow. लॉस Right. एलमोस. मतलब इट Right. इज इवरली वेरी सिमिलर. एंड इसमें वो वाली चीजें भी है जो तू बोल रहा है, बट एट द सेम टाइम मुझे ये मूवी एंटरटेनिंग बिल्कुल इतनी नहीं लगी जितनी वो वाली लगी. तो ऑब्वियसली वो तो अब पर्सनल ये है, बट आई Right. एग्री. तू जो बोल रहा था कि जो दैट सेंटेंस जो दे डिडंट प्रोब इनफ and made it intellectually satisfying on the nuclear of it all, मतलब वो Right. इम्पैक्ट, वो Actual मुझे physics. बहुत ही अच्छा रेजोनेट हुआ. कि नहीं नहीं नहीं, मतलब उनने ऐसे गवर्नमेंट पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशंस दिखाए हैं, यहाँ हाँ. फोड़ते वहां फोड़ते. कितनी गंदी एक लाइन है, बोलता है आई टुक क्योटो ऑफ दिस लिस्ट बिकॉज़ आई स्पेंट माय हनीमून देयर. Yeah. आई Yeah. मीन That's the. हाउ वुड यू इवन रिएक्ट टू दैट? व्हाट इज दैट That is. स्टेटमेंट? That is ad-lib, by the way. क्या बात कर रहा है? Yeah. So the original, one of the best ad-libs in movie history, probably. I mean, so the thing is correct. मतलब factually it's correct. That is apparently what the general. I don't know. It was the Secretary of State, Secretary of Defense, someone, whoever that general was. The guy said. Original line was just, "We have done research and Kyoto should be preserved as a thought." But the actor ad-libbed it saying कि my wife and I visit there, and it makes it like way more horrifying. वे मोर ब्रो, कितना कोल्ड, इतना अनसेटलिंग था. मतलब हाउ डू यू रिएक्ट टू दैट ब्रो? That's how it's about how decisions like this are made in rooms. वेरी क्रेजी ब्रो, Yeah, वेरी रियलिस्टिक आल्सो, लाइक इट फील्स very वेरी realistic रियलिस्टिक. also. Yeah. You said तो too वो, much that I don't know where to like respond. I agreed with बट some of it, I वहां disagreed with some of it. या आई मीन आई एम श्योर, बट मुझे वो You were लिटिल saying डिटेल्स something, दैट yeah. आई पिक्ड अप ऑन द सेकंड वॉच वर वेरी I'm एंटरटेनिंग फॉर मी. amazed that लाइक you आई went for the second time, bro. It's insane. ब्रो, मेरे को एक बार तेरे को देखना पता है, है, पर मतलब थोड़े साल में से लैपटॉप पे देखना है मेरे को with subtitles. I feel I'll enjoy प्लीज it more. रिवॉच कर, क्योंकि काफी चीजें. मेरे को एमिली ब्लंट की वो पूरी वाइफ उसने इतनी अल्कोहलिक थी, वो चीज तो मैं भूल भी गया था. कितने सारे पेपर्ड हिंट्स कि शी इज एन अल्कोहलिक मदर, प्रॉपर Bro, अल्कोहलिक hints है नहीं वो. bro. Obviously से उसका पूरा personality is being an alcoholic ऐसे दिखा है. हाँ, बट मैं, मेरा ध्यान उस पर था ही नहीं. लाइक मैं बोल रहा हूँ ना, मैं फर्स्ट टाइम आई एम एक्सपीरियंसिंग समथिंग, तो मैं ऐसा हाँ. काफी सारी चीजें से साइड से निकल जाती. दे ट्राई टू लाइक ऑर्फन, मतलब ऑर्फन क्या बोला, दे ट्राई टू लाइक गिव देयर सन अवे एंड एवरीथिंग बीच में. Right. मतलब वो सारी काफी, बहुत सारा मूवी है ब्रो इसमें, बहुत सारा.
हाँ आई थिंक मेरे को टेक्स्ट भी काफी मेरे को तेरा टेक्स्ट पढ़ना था क्या क्या बोला तू पेपर थ्रू आउट वे आई डेंट ग्रेड इट हाँ मैं मेरे रिव्यू में मैंने ग्रेड या मेरा रेटिंग नहीं डाला आई डोंट because there is no context for people to know what my usual grade rating is. ऐसे मत करना ब्रो, टीज मत करना ब्रो, ग्रेड कर ब्रो. No, but you know, na, that's like आई नो, ऑब्वियसली आई नो, बट लाइक it's more मतलब of ऐसे the review is more of an essay about the movie rather than a. इट्स वेरी Uh, इंटरेस्टिंग फॉर समवन लाइक यू टू नॉट ग्रेड इट और रैंक इट और रेट but इट, I do मतलब rate समझ रहा है. it. Obviously, in my movies list, it's there with a numeric rating. But like you're very open with your blog and everything also about who you are and what you like and what you Oh, dislike. but the So fact for that that, हाँ I don't वो know, I ऐसे. felt like it would take away from the actual essay. It's the that's very interesting. That's very interesting once you point it out. I didn't even think about it. It just felt wrong to add a numerical score at the start or at the end. I completely understand that concept. Yeah. I completely understand, and it does or it doesn't take away. Sometimes it does, sometimes it doesn't. Yeah. वो है. I agree with that. But मेरे लिए सरप्राइजिंग है कि तेरी भी चॉइस वो थी. Right. For someone who's so into ratings and stuff. Yeah. Yeah, interesting. Interesting that But it's interesting that you find it interesting that I find it. Whatever. You laid your qualms in a neatly organized way. It was very clear what the problems were. How could they perhaps have been avoided as हाँ well? bro, तेरा ये बहुत सही है, तूने जो से डिवाइड किया ए बी सी डी सारे थ्रेड्स को. Yeah, मतलब इट वाज वेरी रिस्पेक्टफुल ऑफ द स्क्रीन प्ले एंड द मूवी yeah, दैट इट वाज. yeah, बहुत ही अच्छे से तूने वो बताया. पैराग्राफ ब्रेक्स भी तेरे बहुत ऐसे थे, इम्पैक्टफुल थे. yeah. Only you notice this stuff, man. नहीं Yeah, ब्रो. makes you seem less like a biased reviewer with contempt, but more of a long-term fan who just wanted greater things. Yeah, man. My या disagreements ब्रो. I completely get where you're coming from. These issues in there are issues in every single art form except melodrama. But it's how you perceive as an said issue. We'll talk more on this. Yeah, no, it makes sense. मतलब तेरे इश्यूज मुझे पता चले, बट वो मेरे लिए इतने सिग्निफिकेंट नहीं रहे क्योंकि मेरे को ग्रेटर होल बहुत सही फील आ रहा है. You know, the बट funny thing is, हाँ. sorry, just one thing. Even after I published the review, I was like, there were, bro, the thing about writing reviews is you just think of more things when you write, and it's never over. Like there are two इट्स खुद का नेवर ओवर डेप्थ ब्रो. देखकर तो ऐसे होता है. तू अभी वापस से वो रिव्यू लिखेगा ना, तू एक अलग पूरा अलग, टैंजेंट I पे चला can जाएगा. write a completely different review that doesn't repeat any of these points. Exactly. Yes, I completely relate to that. And then that makes me think how less we think about things because this is like the first thing I've reviewed in many months, and like because of that I thought so much about it. But I've seen so many things, Exactly. which is and this we realize like most people don't review stuff at all. At least we rate and stuff. So in general, Bro, I know. I how know. little people think about everything. But I forgot to Very write that only. The main thing I forgot is like basically the problem with this movie is it moves too fast and the music is too अच्छा. much. That's the two main problems with the movie. Baki everything Music is is fine. It's too. too much. It's everywhere. Oh, वो okay, तो थोड़ा okay. शांति होना था. Like even the like I chill get it. करना थोड़ा ऐसे एक scene पे थोड़ा. And he cuts too many shots पे. Did you notice that? So उसको shot रखना पसंद नहीं है मूवी में. जैसे सब कर रहा है. हाँ, द ओनली I ऐसे don't. एक स्टिल I शॉट mean होता है जब वो पूरा सूट अप होता है ऐसे, हाँ टोपी हाँ पहनता है, वो सिगार मतलब पहनता है, आइकॉनिक चलते हुए आता मोमेंट्स है का है. बस. ट्रिनिटी टेस्ट का हाँ. है और वो सब. बट ऐसे नहीं और ब्रो, वो ट्रिनिटी टेस्ट में भी बहुत कट्स हैं. जो है ब्लास्ट क्या होता है हाँ. ना, उसमें भी कट्स No, हैं. I saw some very good ऐसे short reviews of the film में उसमें भी बट like one इंडी person was वायर का है just ना, इंडी वायर का क्या रिव्यू बहुत. लिखा है मेरी उसने भाई, गांड फट गई ब्रो. उसने नोलन को रिव्यू कर दिया ब्रो, उसकी लाइफ को रिव्यू कर दिया ब्रो, पूरी फिल्मोग्राफी रिव्यू कर दी ब्रो. ब्रो क्या लिखा हाउ कैन एनीवन राइट लाइक दैट ब्रो. ब्रो मैं, मेरे को भी नहीं समझ आया कौन है वो, रेगुलर राइटर है क्या इंडी वायर का हाँ हाँ वो. प्रॉपर आई थिंक मतलब एबी मेरे को अब था ऐसे से भी लग रहा है एसोसिएटेड कि था. इंडी वायर चेक प्रिंसिपल करते रहना पड़ेगा, ऐसे लग रहा नो है. नो दैट फॉलो दैट गाय स्पेसिफिकली उसका आई फाउंड हिज रिव्यू थ्रू समथिंग आई डोंट नो. बट मतलब वो मेरे रिव्यू पढ़ के मेरे डिसएग्रीमेंट्स को इतने थे, लेकिन कैसे हाँ ब्रो लिखता है. हाँ. ओ गेला ब्रो तेरा नेट टेक्स्ट यू नहीं
तू फ्रीज हो गया स्क्रीन पे FY. तू फ्रीज. ओ तेरा नेट गया ऐसा लग रहा है. अचानक लैपटॉप डिस्कनेक्ट हुआ है. समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है. ऐसे क्या होता है. ऐसे कैसे हो जाता है बे. रुक फिर से ज्वाइन कर दे. फिर से. हाँ भी तू कॉल लीव तो किया ही है मेरे को दिख रहा है. लैपटॉप नहीं तो फोन से ज्वाइन कर दे. क्या. मैं मोबाइल डेटा से कनेक्ट कर रहा हूँ. मोबाइल डेटा आई थिंक कनेक्ट हो जाता है. मेरी वाईफाई पे दिक्कत है. That's what you were talking about. IndieWire का रिव्यू कितना अच्छा लिखा है. And another thing, like reading other, like when I'm writing a review, no, I read other people's reviews also. So it gives me ideas ki, oh, this is also something. Like because if I disagree with something they say, it won't stick. But if I agree, like it launches new thoughts. And I think him not like launches new thoughts अच्छा कि it tells me things I already knew but I didn't even know that I knew. वैसे type. Right. The thing I wrote up at the end about how he doesn't have any personality, right? He's like that came from the IndieWire thing because as soon as I read that I was like shit, babe, that is absolutely right. And like when I've only seen the, so we are on very two different here because I've seen the film only once but I've written a review about it, so I've like thought a lot about it. But you've seen the film twice, so you've thought about it in a different With subtitles, bro. With sub bro. 0.5 रेटिंग ऐसे उधर ही ऐड होता है. No, bro, jokes. 0.1 I think 1.0 स्कोर बम्प थिएटर्स में होता है. 0.5 to 1.1 0.5 सबटाइटल से होता है. Yeah, bro, I swear. मैं second time बहुत notice किया कि dude, Harsh, imagine this movie without subtitle. I was like, damn, it would give me a headache to keep up with everything, bro. Yeah, bro. Even in I don't know, you need close. That's why I want to watch it again. But yeah, like I was saying, so we both like, and I just keep realizing new things. But like at the end of the day, there was just something fundamentally disappointing about it. हाँ नहीं exactly. देख मैं वही बोल रहा हूँ. It's how you mentioned about. I think तूने कुछ ट्रेविस स्कॉट वगैरह का भी मुझे भेजा था. Where there was this one tweet which said that he's like an AI. Great tweet. Great tweet, right? But the fact is, you will only think about that if you are fundamentally disappointed by it. समझ रहा है? People who are enjoying it, they are enjoying it for completely different reasons. Like they're enjoying the packaging only so much that it doesn't matter what the inside the substance is. Jैसे. Nahi, like I know Rodeo, it is not empty spectacle for me. There are like very deep moments also in Rodeo in his other albums as well. Astroworld is more like a blockbuster type album जहाँ पे Coffee Bean में ही उसने opened up. Otherwise best song. Yeah, arguably top. Best Travis top song. For me, best Travis Scott song, which says a lot about me. Yeah. Yeah, literally. So yeah, but like he has deep cuts in Rodeo and everything. So वो चीज है. So it's like you'll only see it as a problem if the other things are not working for you. If the whole thing is not connecting for you, that's when the problem becomes glaring. Problems होंगे ही सब में, but वो glaring तभी हो जाता है. Yeah, that makes sense, man. So like J. Cole. तेरा एक और है. Yeah. 2 mic से. So even J. Cole में मैं ऐसे नहीं हो जाता हूँ कि oh my god, let me hear the beats first. ऐसा नहीं रहता है. I want to hear the raps only, because J. Cole is only gonna give me the bars. और Kanye West में I'm like, let me hear the sample first, bro. Like समझ रहा है? तो it's like even if उसके bars are not as superb as resonating as J. Cole's या Nas या someone like that, अगर तेरे को overall packaging से problem ही है, like if the music is not connecting, because I think Travis Scott does a lot of things with his music. उसके space में उतने सारी चीजें हैं जो feel होती है. उसके but if that words only में doesn't connect, you'll notice the next level. हाँ, तो फिर तेरे about उसके noticing the words next पे level. focus करता है. Exactly. Yeah. It's like वो
अगर तेरे को रनअवे का फर्स्ट हाफ ही कनेक्ट नहीं हुआ तो तू एंड के ऑटो ट्यून को गाली देगा. Worst. Disgusting. So I think म्यूजिक में वो बहुत सब्जेक्टिव बन जाता है, बट इट इज अ वेरी गुड थॉट प्रोवोकिंग ट्वीट, बट इट इज नथिंग विच इज वेरी कंक्लूसिव, क्योंकि ये म्यूजिक है. एंड ऑफ द डे तुम कुछ भी बोल रहे हो वो सब्जेक्टिव ही रहने वाला है. Right. हाँ, तो Yeah, वैसे है, makes लाइक आई sense. एंजॉयड यूटोपिया थोड़ा बहुत इन बिट्स एंड पीसेस हियर एंड देयर, बट आई Right. थिंक इट वाज वेरी वेरी हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय जीसस, which is a fair thing for Travis to do, because Travis ने जीसस पे भी काफी प्रोडक्शन, but it just felt like he could have reinvented himself in a different way. Right. तो I'm gonna obviously it's not अभी तो मैं शुरू में ही हूँ, but still it's not very 8.0 great. 8.0 predicting. Never bro. Donda rating, dude, Donda rating कभी नहीं होगा. Donda is 8.0 bro. Donda इतनी अच्छे से एज हो रहा है ना, like I can't even, it is such a huge package bro, huge package. So happy It with is the that. best album to get a 7.5 from. Yeah, I mean जो भी रेटिंग होगा उसका, उसका बेस्ट रेटिंग वो का एल्बम वही होगा. No, because I can't give it an 8. That's the thing. हाँ, I completely get it, like वो reasons, but इसमें this is like entire Kanye's discography, but मतलब ये greatest hits collection है, but all songs are new. समझ रहा है? It has a song Right. from Graduation, it has a song from 808s, it has a song from MBDTF, but सारे new songs है. Right. Jesus Right. वगैरह सब है. No, But makes yeah, sense. हमारा conversation कितना गंदा derail No, होता no, है it's ना. fine. Meanwhile, I was opening some reviews that I read about Oppenheimer. हाँ प्लीज बता मेरे That को. helped इंडी me वायर वाला तो बहुत ही contextualize. अच्छा था. तूने एवी क्लब का पढ़ा क्या? बिकॉज़ आई थिंक एवी No, I क्लब don't गेव इट अ read. वेरी वेरी हाई ग्रेड. I don't read AV Club anymore. आई थिंक फुल मार्क्स दे दिया उनने. Yeah, fuck it, man. I don't care. So wait. So this guy, this is the Economist blog that I read. The Economist knows everything. The interesting guy. ओके, So दिस he इज just लाइक wrote द like a very rough. सिचुएशन, एकदम एकदम अंडरग्राउंड शिट, अंडरग्राउंड रिव्यूज लेके आ Underground रहा shit, है bro. सिद्धेश. Bro. या So the thing is, I don't read movie reviews of movie critics per se. I read movie reviews of people who I find interesting and who write about other stuff also, but they watch movies also. डूड, बार्बेनहाइमर का लेटर बॉक्स पे जो फील्ड डे हुआ है ना, इट वाज सो एंटरटेनिंग. लेटर But see बॉक्स now, इज आल्सो अनदर. ये हाँ bro, I बता. am Letterboxd fan now. Let's talk about that later. But it's like this guy says, I will say I found about 30 minutes of excellent movie in a 3-hour experience. He's very harsh about it, but mostly I agree with him. The best हाँ, material starts when the bomb goes off. See, this I agree. There's remarkably little about the social, intellectual, scientific excitement at Los Alamos. Like he completely failed at capturing that, bro. He just like rushed so quickly through the all the yeah. scientific excitement, that's the word, like that That's the nails it. word. But I didn't want to steal, like I couldn't use that exactly. So I didn't, but I got it completely, but वो है and वो जो था ना. yeah, and हाँ, also the dialogue is choppy and poor throughout. Dude, I have to agree with this. The dialogue is not good in this movie. I don't know how you're not complaining about it. I remember so many lines from it, like I can't So even. there मैं are तो very बहुत. good lines, but the average quality of the dialogue and conversation is very basic in a way that a scriptwriter would. Oh, a girl and a guy are talking at a party and they start flirting. कैसे banter होगा वैसे? Oh, like a guy, two physicists are talking about XYZ topic. How would they I do it? think तूने जेम्स कैमरन के लिए भी सेम क्रिटिसिज्म डाला था. James Like Cameron was even worse. James Cameron was borderline horrible dialogue. I wouldn't say about this. this felt very like it जब didn't वो like. हर्ष मैं तेरे को बोलता है जेम्स कैमरन वो जब उसके बच्चे को लाता है ना फर्स्ट टाइम स्पेसशिप पे वो द बिग विलन उसका बच्चा रहता है and the bacha is resisting torture and so he goes into the room. I still remember this moment. At one point the big guy says easy there tiger. Bro, that line got me out of the film, bro. Like kya matlab I don't know why but it's such a like the most chat GPT line ever, bro. Like how would you write a guy telling his son to calm down? Hey, easy there, tiger. Like, why couldn't you say anything else? Like, I don't know. But that was one of those things like it was so borderline cringy. Not cringy, just cliche, I think. But yeah, Yeah, then he says blah blah blah. Various see another thing I agreed with. Various male-female interactions all seem so hurried. Very true. And then there was too much music. He kind of like very briefly nailed this. And then another review, I'll just quickly
these are like very rough reviews. They're not like full yet. They're just a paragraph or two. But they've kind of nailed it. Why are movies so damn long? Blah blah blah. But she also nailed something. See again, why can people no longer write good dialogue and light actresses properly? There's a character who's an alcoholic, literally shown 57 times. And yeah, this I agreed with the most. Oppenheimer's three movies, three endings, political inquest, scientific collaboration, and lone geniuses messed up life. This paragraph like kind of guided my review. When I complained about that, this made me realize the movie Oh, I would have excited loved to scientists see. work as a team on super secret important project until they, yeah. No, read the whole thing, and then they have to review the consequences. Flawed leader Real has inner conflicts that escalate. All this goes beyond tears to team apart, lesson pain. This should have been the movie. Like yeah, as I soon think as this is you a read, very bro, I don't know how people like this is so concisely and well put. And as soon as yeah. I wrote this, I was like, shit, this is perfect. And that's the thing, like you don't know what you're missing out till you read alternate versions of what could have been. So this is like, Right. मतलब because this movie is made by Nolan, right? उसमें ऐसे Nolan के बहुत ऐसे signature traits है, and there's a lot of Hmm. positives with that, but उसके negatives बहुत है बे, and he's not suited for like material like this. He cross cuts too much. उसका dialogue बहुत ऐसे male female interactions तो ऐसे 2 minute में चलो, you have 3 minutes, you have to make them flirt and then they have sex. वैसे करना है next scene, अभी he's back to his childhood days or something like that. ऐसे उसमें कुछ ऐसे genuine ये नहीं एक है तो. मूवमेंट हमेशा रहता है, स्टैसिस कभी नहीं होता है, एंड कभी कभी स्टैसिस इज गुड. And I get why ये movie में he didn't want stasis because it's like the subject matter is not as exciting as like Batman or anything. और 3 घंटे का मतलब उसको पता था स्क्रिप्ट इतना लंबा है तो 3 घंटा होने वाला है. So he has to keep the audience on their toes. But उसके वजह से मतलब good thing about Nolan is because of Nolan's name इतने लोगों ने मूवी देखा and we're talking about it. उसको इतना importance मिला. किसी और ने बनाया था किसी ने no people wouldn't have cared. So on one level it's amazing that people are like now talking about it. But on another level, I can't think of a specific filmmaker, but I can think of someone making a way better movie, like almost a 9 or 10 on 10 movie about Oppenheimer. But I can't imagine what that movie is like. But it आई would गेट इट, basically कंप्लीटली गेट cover इट. more of the scientific part. And ठीक है, एंड में उसका गिल्ट विल्ट दिखाना चाहिए, वो सब अच्छा है, but it would completely ignore all the McCarthyism and उसका Louis Strauss का hearing and the whole political game that Louis Strauss plays. हाँ, नहीं वो समवेयर आई एग्री कि लुइस स्ट्रॉस का जो मतलब नेसेसिटी वाली चीज, बट हाँ. इवन देन लाइक आई कैन सी द प्रॉब्लम विथ इट्स नेसेसिटी. इट But you just like it so much कि आई ओवरऑल मतलब वो पूरा वीव इन बहुत अच्छे से हुआ है सारा. लाइक ऐसे नहीं था कि ओ ये थ्रेड को क्यों रखा है यहाँ, क्योंकि लुइस स्ट्रॉस ने बहुत सारी चीजें ऐसे भी, उसके फाइनल मेल्टडाउन या व्हाटएवर दैट सीन वाज, जब वो हाँ. बोलता है कि आई वाज द वन हु मेड श्योर हिज नेम वाजंट टेंटेड, आई वाज द वन हु मेड श्योर ही इज ओनली रिमेंबर्ड फॉर द बॉम्ब, नॉट द बॉम्ब, नॉट जस्ट द मेकिंग ऑफ द बॉम्ब एंड नॉट द अदर पार्ट ऑफ इट. मतलब Right. उसको काफी सारी चीजें मेंशन करता है वो. Right. आई एम वेरी श्योर कि वो 2 सेंटेंस में भी बता सकते थे कि ओके ही वाज लेटर फाउंड आउट नॉट गिल्टी एंड लुइस स्ट्रॉस वाज पनिश्ड. ऐसे Right. दो ऐसे And बिल्कुल देयर इज अ फेयर आर्गुमेंट इन दैट एज वेल, बट उसने right. कंप्लीटली लुइस स्ट्रॉस का, आई मीन इट डिडंट फील सम अ सोर थंब स्टिकिंग आउट जैसे तेरे को लग No, रहा no, है. true. I बट आई agree. I कंप्लीटली mean, I think अंडरस्टैंड. no, I think once they decided to go with this movie, they made it pretty well. मेरे को मतलब हाँ, the दैट्स व्हाट इट इज. decision to यस. make this movie this way itself मेरे को नहीं पसंद आया ऐसे हो गया. हाँ, एक सेकंड होल्ड करो. My roommate wants a cable that I don't think I have anymore. But बट if तू you open my review now, a friend of mine हाँ has made a very good comment also, like basically saying कि हाँ, at the मैंने end पढ़ा वो वो सारंग सारंग रे कोई तो right ना. right right उसका भी आई रेड इट, बहुत अच्छा था correct point था कि वो you never पर्सनालिटी see the वाली चीज. actual fallout public में Oppenheimer का कैसे हो because it's so focused on the या पब्लिक रिएक्शन, दैट पब्लिक इज शेमिंग हिम, देन पब्लिक इज गेनिंग अगेन. देख अगर तू मुझे स्टोरी ओपनहाइमर की मैं रीड करता पहले मूवी के, हाँ तो मेरे दिमाग में एक मूवी ऑलरेडी होती हाँ जो जो होगी. मतलब आई कैन प्रिटी मच टेल द बीट्स कि क्या होगा ये बायोपिक में. ठीक है, नोल
फॉर नोलन टू मेक इट, मैं कभी भी मतलब इट्स द वही चीज ना, मुझे नोलन से कभी भी वो नहीं चाहिए था, एंड आई नो नोलन वोंट ऑपरेट लाइक दैट। वो डनकर को भी सीधे से नहीं बनाया, अगर वो इज्जत से बनाता ना तो वो सेविंग प्राइवेट रायन जैसा इमोशनल इंपैक्ट देके चला जाता, हाँ, लेकिन उसने अपना टेढ़ा वे यूज किया, the टेढ़ा लेयर्स is not the करना, problem though. It टाइम is से the little खेलना। things that he does that's the problem. उसका dialogue नहीं जमता उसको इतना अच्छा। अच्छा नहीं, और इसने वो इंटरव्यू में भी ये चीज बोली, डनकर की भी एंड ये मूवी ओपेनहाइमर की भी, दोनों मूवी में ही नोज द इमोशनल इंपॉर्टेंस ऑफ इट, एंड वो कॉन्शियसली पुल्ड बैक फ्रॉम इट। सो ऑडियंस को इमोशन से आइसोलेट करने के लिए जब वो उसको डालना इमोशन तभी वो डालेगा, बट पूरी मूवी को उसको आइसोलेट रखना है, दैट वाज हिज कॉन्शियस चॉइस। अब क्यों थी वो मुझे नहीं पता, बट दैट इज हाउ इज आई थिंक आइसोलेट क्या रखना है हमको समझा ही नहीं। द इमोशनल वेट ऑफ द फिल्म, मतलब ऑफ द टॉपिक। डनकर का जो था वो वेरी इमोशनल था फॉर द ब्रिटिश पीपल एंड फैमिलीज लिविंग देयर, तो उसने जिस तरह से वो मूवी को बताया, उसने कभी भी उतना स्ट्रांगली वो इमोशंस को टैप इन नहीं किया है। हाँ, मतलब अभी सेविंग प्राइवेट रायन ले इट्स लाइक अ प्रॉपर क्राइंग फेस्ट हो I जाएगा वो haven't तो। seen it. हाँ, ओके, मैंने आई जस्ट रिसेंटली सॉ इट, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, yeah, मैं रिसेंटली देखा हूँ, अच्छी मूवी है, देख सकता है, ऑब्वियसली इट्स वेरी पॉपुलर। damn 6.5. हाँ, अच्छी है, देख सकता है। This is the same tone in which people talk about नहीं ब्रो, नहीं ब्रो, Transformers 8.0, 3. नहीं ब्रो हाँ, अच्छी है, देख 8.0 है। सकते। हाँ, नहीं नहीं नहीं, 8 पॉइंट, मैट डेमन है उसमें भी, बट हाँ ठीक हाँ, है। तो मेरा पॉइंट वो है कि एक लिनियर एक्सपीरियंस में तेरे को एक बीट्स रहती है, जो बिल्डअप रहता है, क्रेशेंडो रहता है, और वो रिलीज मिल जाता है सेम, मतलब प्रॉपर, और फिर वो, और एंड वो बहुत प्रेडिक्टेबल बायोपिक वाली बीट्स होती है, जिसमें ओके दे आर वर्किंग वर्किंग वर्किंग, जैसे सिलिकॉन वैली में भी, मतलब या इसमें भी हम देखते हैं ओ करने वाले करने, हमको पता है करेंगे एंड में, कैसे करेंगे वो हम देख रहे हैं, एक्साइटेड है हम राइड पे, बट वही सेम बीट्स नोलन ने बहुत डिफरेंट वे में प्रेजेंट की, कि हो भी रहा है बट एट द टाइम कुछ और भी हो रहा है, उसका भी हम वेट कर रहे हैं, उसका भी एंटिसिपेशन है, बहुत सारे एंटिसिपेशन बिल्ड हो रहे हैं, और फिर वो पूरा एंड में ये हो रहा है, 45 मिनट का क्लाइमैक्स और वट। अब देख, आई नो वो चॉइस इज अ चॉइस ऑफ मेकिंग इट दैट, अगर नोलन बना रहा है तो मुझे उससे एक टिपिकल स्टेडी बीट वाली बायोपिक तो एक्सपेक्ट मैं करूंगा ही नहीं, लाइक टू बिगिन it's विद, लाइक but मैं, हाँ no, the problem is कि I expect a certain kind of movie because the facts are already there. It's not a fictional ये that oh, Nick Nolan matters less here. कि अगर बिल्कुल, कोई Oppenheimer पे मूवी बना रहा है, हाँ and this is हाँ, an important event way, and this is a event that still has repercussions to this day. तो कोई इस पे मूवी बना रहा है तो there मतलब you want it to be a certain, I don't know. I don't think I you want. want it to be I didn't everything. expect, but I didn't have any expectations when I went in. Like 100%. I didn't. मैं ये सब मेरे को मूवी देखने के बाद मेरे को सूझा कि ऐसा होना चाहिए था. मैं जाते हुए मेरे को ऐसा नहीं था. Oh fuck. हाँ, अब ये दिखाएंगे. I'm excited for this. I'm excited for. I just went in blank. I read all the facts. मैं थोड़ा ऐसे विकिपीडिया वो सब पे मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट आ गया. बिल्कुल And बिल्कुल, because I read all the facts, I was like, shit, this is like कितना कुछ like I didn't. I only knew this on a surface level. Truman was the one who dropped the bombs, that Hiroshima Nagasaki पे हुआ, that something nuclear fission does something. I didn't even know what it does. But then मैं पूरा chat GPT किया, मैं nuclear fission का find out, I got extra interested in all the physics, the history, World War II, and everything. हाँ, And I you was like, said that, fuck. हाँ, in your And now reviews, like I हाँ can't wait to see what. But then what happened was that it just reiterated हाँ, everything. It didn't add any depth to it. He, समझ implications गया it मैं, never discussed of anything. And I don't know, it's too much to ask maybe because it's like he wanted to focus on that guy's life. But then, like I wrote, that if he's focusing only on Oppenheimer, then उसका भी कुछ ऐसे character से flesh out नहीं लग रहा है मेरे को, कि वो भी blank slate ही लगता है. So it doesn't succeed anywhere. ऐसे भी नहीं कि तूने कुछ thoroughly उसका scientific ये दिखाया. You didn't make a science movie, you make it a historical biopic. But then once you've chosen to make a historical biopic का जो subject है उसका भी मेरे को कुछ ऐसे ये नहीं लग रहा है. तो like हाँ, you didn't win I see, anywhere. Like, I understand, I पूरा like I completely get where you're coming from, मतलब तू proper तू actually you went in with like research and stuff, and you हाँ, were expecting some things and you got it, but you were expecting more than that, like because हाँ. he is doing that. I wanted it to अब add flavor to my
research. I didn't want to see Imagination. the facts. हाँ. I read कि Oppenheimer when he was young he poisoned the apple. Or they showed the poisoned apple. Oh, he Oh, hooked you up with did like read the that. अच्छा yeah. अच्छा It's a very famous story of his. So अच्छा. then he had a girlfriend who was a card-carrying member of the Communist Party, and that caused problem. Oh, he meets her at the party. There, I'm said, okay. Then he meets this girl. He dumps the girlfriend. He marries her. Oh, they're showing that. Like everything I read, they were showing. I was like, okay, okay, okay. Like, what about it? Hmm. Like, uske aage kya? They give me some. And the problem is, I don't have a good counter example of this where something is based on a true story. I know the true story and I watch the movie, and it adds like a different dimension to the story. But I'm sure there exists something. Like I can't think हाँ of हाँ हाँ. anything right now. Maybe I think the Steve Jobs movie is a good example, Michael Fassbender wala, which is it's Sorkin kind of वाला. because it's kind of a weird movie. It doesn't do the biographical thing. It just takes three बिल्कुल नहीं, events of his बहुत life, कंटेंट है, बहुत ज्यादा. एग्जैक्टली, but इट्स अ it वेरी goes for डिप्रेस्ड. character, and हाँ, it kind of succeeds there. It's like it's again. I don't think the movie works overall. थोड़ा आई अजीब किया है. अंडरस्टैंड स्टीव जॉब्स एज अ पर्सन. हाँ, exactly. You get a sense of it. बिल्कुल, ये And बहुत अच्छा आर्गुमेंट है एंड आई एग्री विद इट so कंप्लीटली. I कि don't know what the हाँ, right way is to make this movie. And मेरा आई अभी नो. memory कम होते जा. मतलब it's been almost a month now that I've seen this. Like I'm just going by my own impressions. राइट. But it's like यार सब जगह मतलब it didn't whatever it. But then once you दैट्स द. accept that, it's good. But हाँ, the accepting that only is the problem. अभी एक बार accept किया कि ऐसे आई biography गेट बनेगा, इट. then must actors जा रहे. Mostly they're giving good performances. Some of them are giving really good performances. राइट Everything is must राइट music and all that. But it's like राइट 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 राइट. तेरा पूरा लाइक पूरा समझ में आ गया. लाइक यू yeah, आर वेर यू आर स्टैंडिंग. मतलब तेरा कोई ऐसे हेट वगैरह बिल्कुल नहीं है. हाँ. इट्स लाइक वो चीज जो थी, उम्फ जो था, जो चाहिए था, वो नहीं हुआ. उम्फ तो नहीं था ब्रो. नूम्फ था. एग्जैक्टली. फॉर यू. नो मेरा उम्फ. मेरा कैसा था ना, आई वाज लाइक, पहले मैं सोचा ओपनहाइमर बना रहा है नोलन, क्या पागल हो गया, टाइम ट्रैवल हाँ साइंस फिक्शन. मतलब हाँ तो फर्स्ट आई वाज लाइक, बट देन आई वाज लाइक वेट, उसने डनकर्क भी बनाया है, तो ही उसने वो करना तो है ही उसको, बट ही इज गोना हाँ डू इट इन अ वेरी वियर्ड वे. ये मैं हाँ श्योर था, क्योंकि हाँ. मेरे को मेरा डनकर्क एक्सपीरियंस पता था, और मुझे पता था मेरा फर्स्ट व्यूइंग शुड ऑलमोस्ट बी इररेलेवेंट हाँ. इन उसको दैट नींद सेंस. नहीं आती ऐसे लिनियर बनाया तो वो सो नहीं सकता. नहीं नहीं, हो ही नहीं सकता है ब्रो. वो खुद तो का आई लाइफ भी वाज वो लाइक, वेडनेसडे का शेड्यूल मंडे को जीता वो. और फिर वो मंडे को या थर्सडे को वो तो आई सेक्रेटरी वाज को बोलता है उसका वेडनेसडे का जो भी मीटिंग्स है ना मेरे को मंडे को. तो मेरे को ऐसे लगा था कि ओके, डनकर्क उसने ऐसे वियर्ड वे में किया था, बट डनकर्क कोई सिंगुलर स्टोरी नहीं था, ये बायोपिक है लिटरली. तो अब हाँ. इसको नोलन क्या छेड़ेगा? यू ठीक है, वेंट फ्रॉम द नोलन थिंग. मुझे हाँ पता था वो छेड़ने वाला है. हाँ आई वो, हाँ. क्योंकि डनकर्क का ऑलरेडी उसने इतना बड़ा सदमा दिया था ना. आई फर्स्ट टाइम सर. स्लेप्ट इन अ मूवी थिएटर दैट इज डायरेक्टेड बाय क्रिस्टोफर नोलन. आई स्लेप्ट. कभी नहीं होता ऐसे रे. Crazy. हाँ. Yeah. बट ऑन सेकंड थर्ड व्यूइंग्स आई रियली एंजॉय इट. ठीक No, है, it's good. तो वो अलग I चीज can है. imagine someone liking this. Like, just to interrupt 1 second, if someone tells हाँ. me that their favorite movie is Dunkirk, हम्म. cool, I can see it. If someone tells me their favorite movie is Oppenheimer, I will judge them. You don't have taste. You see the difference? Dunkirk is हाँ. also like a seven-ish movie for me. But अच्छा. usme, I don't know. It does everything better, I think. And like I can see someone seeing more in that film. Like उसमें depth someone can find. इसमें find करने को ही नहीं है depth ऐसा लगता है मेरे को. इंटरेस्टिंग. मैंने इतना Yeah. सारा तो बोला मूवी के बारे में ब्रो, बट कोई बात नहीं. I agree इनिशियल. with your thing, but I don't see it. And I हाँ, आई forgot गेट इट. how many. You said a lot of things which were very interesting. एकदम start में जब अपन ने start किया ना. बहुत सारी चीजें, मतलब छोटी छोटी जो मुझे नोटिस हुई हाँ, अबाउट. तेरा वो पूरा chain reaction. Bro, that is a brilliant reading. But I don't know. But like that is very and the हाँ, footsteps thing brilliant, bro. And I think वो intentional है. But I just don't care. ऐसे हो गया मेरा. आई गेट इट, आई गेट इट. मेरे बाजू में वो लिटरली बैठी थी, एंड शी वाज लाइक, आई वाज लाइक लिटरली ऐसे, ओ माय, ऐसे एवरी सीन चेंज में हाँ. आई वाज लाइक हैविंग अ Oh, she was watching for the first जर्क time. रिएक्शन. हाँ, शी वाज वाचिंग फॉर द That's the फर्स्ट most worst thing when you watch a movie with someone who's watching it for the second time. टाइम. या, बट लाइक आई Oh, डिडंट watch मेक इट this लाइक. scene. Oh, don't forget now something cool. It's the worst, bro. If someone tells me that, ओ माय गॉड, किल मी नाउ ब्रो. yeah, kill me now. तो मैं, जो मेरा इनिशियल थॉट है उस पे मैं वो फिनिश ऑफ कर रहा हूं. तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि नोलन कुछ टेढ़ा करने वाला है. ठीक हाँ है, आई वुड हैव बीन डिसअपॉइंटेड अगर वो एक लिनियर और सिंपल
linear भी, I wasn't expecting it to be non-linear, but obviously कुछ तो होगा अजीब. I said usual imitation game type biopic you didn't expect. Yes. Oh my god, I hate that movie, bro. I hate that I movie. don't Why like does it. everyone like it, bro? तो बट नोलन का कैसा रहता है ना, तू प्रेस्टीज और ये सब भी देखा, उसका है ना ओपनिंग एक एंटीथेसिस दे देता है ऑलरेडी. हाँ. द मूवी इज गोना बी अबाउट दिस हाँ. एंड दिस ओनली. इसको हम पूरा निचोड़ेंगे. हाँ. पूरे मूवी में हम इसी को, तो वो प्रोमीथियन कोड जो है हाँ. पूरा निचोड़ा है मूवी ने. हाँ. मूवी ने इतना कर दिया है फोकस उस पे कि उसके आसपास की चीजें जो तू बता रहा है विच आर वेरी वैलिड, कि एक्साइटमेंट जो फिजिक्स का था इनिशियल यंगर डेज में, थोड़ा एक्साइटमेंट फिर भी बता रहे थे जब वो साइंटिस्ट को मिलता था वगैरह. मुझे लगा था ये कैपिटलाइज होगा आगे. अभी दे आर होल्डिंग इट बैक क्योंकि ये आगे फूटने वाला है नेक्स्ट लेवल पे. जब मार्बल्स डाल रहे हैं वो उसमें, मुझे लग रहा है कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है. फिर एक बार बोर भी खुद आ जाता है और वो बोलता है कि दे आर यूजिंग वाटर इंस्टेड ऑफ दिस. तो दे लाइक ओ दे आर सो रॉन्ग, बिहाइंड अस. दे आर बिहाइंड. मैं बोला पर तुम फॉरवर्ड कब आए? मतलब वो तो बताया ही नहीं कि तुम फॉरवर्ड कब आए. दे आर बिहाइंड अस बट हाउ डिड यू रीच दिस एंड सबवर्टेड दैट. मतलब इसके भी कोई टेस्टिंग्स और एक्सपेरिमेंट जो तूने भी तेरे रिव्यू में लिखा कि वो उसने बस डेटोनेटर टेस्ट दिखाए हैं लिटरली. वो ऐसे पीछे ट्रिनिटी टेस्ट के पहले जस्ट वो बस ऐसे छोटे छोटे बॉम्ब डेटोनेशन वाले दिखाए क्या? वो दिखाए. हाँ, और वो भी क्यों दिखाया पता है? वो भी बहुत नोलन का सेल्फिश रीजन है. पता है नोलन को स्पेक्टिकल चाहिए अपने ट्रिनिटी टेस्ट का. तो उसके लिए उसने प्राइम कैसे किया, उन्हें एक सीन दिखाया है जिसमें ब्लास्ट होता है, वो थोड़े डिस्टेंस में रहते हैं, तो वी सी द लाइट एंड देन फिर वो साउंड आता है और वो लोग ऐसे 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 होते हैं. ही इज लाइक प्रिपेयरिंग यू टू गेट द साउंड लेटर. एग्जैक्टली बहुत सेल्फिश रीजन के लिए वो दिखाया है उसने. क्योंकि आई वाज लाइक अगर उन्हें दिखाना ही नहीं था तो ये भी क्यों दिखा रहे. बट ये दिखा रहे क्योंकि उसको प्रेप करना है ऑडियंस को फॉर दैट ट्रिनिटी टेस्ट का जो साउंड बैरियर आएगा, वेट साइलेंस होगा, फिर जाके जो इम्पैक्ट आएगा उसका फोरशैडोइंग है वो. इंटरेस्टिंग. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. तो बहुत सेल्फिश है इन दैट वे नोलन, कि उसको अपना जो डायरेक्टर वाले सीन्स है ना उसको एकदम जोल्ट देना है. फुटस्टेप्स के साथ भी वो वर्क किया, इसके साथ भी वो वर्क किया फॉर मी. बट आई कंप्लीटली एग्री कि ये सब चीजें नहीं है इसमें. बट वो मेरे लिए ऑलरेडी, तू जो बोल रहा है ना, देखो एक्सेप्ट करना पहले था फिर वो था, मेरे लिए ऑलरेडी वो एक्सेप्टेड था. और मैंने इतना रीडअप भी नहीं किया था, तो मेरे लिए कोई ऐसे ये नहीं था कि ओ ये तो सब मुझे पता था. लाइक तूने क्या बताया. That's why I wrote like you're better off not knowing. You seeing first time you see, oh ये भी हुआ, oh cool ऐसे. Which is sad for a biopic, for someone to say that for a biopic. तो वो I agree with that also. मतलब अभी तू वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में सब पढ़ लेगा, पूरा जान लेगा, और फिर तू वो एपोकलिप्स नाउ देखेगा और तू डिसअपॉइंट हो जाएगा, तो कितना गलत लगेगा. मतलब I haven't seen that, but yeah. No, I'm just saying. Yeah. Obviously वो अलग स्टोरी है पूरा completely, but I'm just saying. That's also a real story, क्या? As an example. नहीं, I don't think so. It's fiction only, no? It's fictional, but it's based in a real setting. वैसे है. He comes out of the lake, right? That. That's the only shot. बहुत सही है. वो शॉट देखने में बहुत satisfying था. I was like, dude, I am watching an iconic shot. ऐसे लग रहा था. वो by the way, Wire में I saw an iconic GIF. वैसे एक देख ऐसे black guy का GIF है. But that's from the Wire? That's from the Wire, bro. वो ऐसे करते हैं. Oh my god. I saw it and I rewinded it again and again. I'm like, oh my god, what did I witness? What did I fucking witness, bro? कुछ तो से Marvel TV show से कुछ तो रहेगा, bro. नहीं, bro. I know exactly what you're talking about, bro. That's a very important GIF. It's very important GIF in pop culture, bro. And वो Wire का है, season 1 वो भी. Me when I learned the fruit orange is named after the color. Like, oh. Yeah. Oh, man. But हाँ तो Oppenheimer. The Wire episode में है क्या वो? नहीं. अरे. Third last वगैरह. ऐसे कैसे कर दिया? Wire episode का नाम रखती है. But yeah, तो वो सारी चीजें काफी मुझे मतलब. What? To name an episode after हाँ ना. The first season. Like it should only be about the last season. Yeah, bro, leaving half the impact of named episode name titles, episode titles. Right.
बट हाँ, तो वही है कि ओपनहाइमर का बस आई न्यू इट वाज गोना बी टेढ़ा, आई न्यू इट वाज गोना बी वो एंटीथेसिस पे ही रहेगा, प्रोमिथियन वाली चीज पे, और Right, so विष्णु you were वाला चीज भी primed for that. दो बार रिपीट किया है, एंड प्रोमिथियस वाला भी 2 बार Also, I रिपीट have किया a very minor nitpick. I hate that the quote was came in like an explosion. It should have been on a black screen clearly, and then the movie should have started. Very minor है। nitpick. हाँ, I didn't like that. ऐसे explosion हो रहा है और ऐसे quote आके गायब भी हो रहा है, ऐसे clearly आना चाहिए था. Cut, move on to the आई गेट movie. इट, आई कंप्लीट गेट, वो ज्यादा इफेक्टिव रहता। Because it's a very दिस इज important quote. वेरी इंपॉर्टेंट कोड, और Yeah, we उसमें don't उसने need इतने distractions. साउंड इफेक्ट्स और ब्लास्ट और फुटस्टेप्स और सब डाला है। बट आई थिंक उसको, नोलन, मैं बोल रहा हूँ वो थोड़ा सेल्फिश है, उसको हाँ है ब्रो, ना। वो है मतलब at this point you can't not be like तेरे में इतना confidence रहेगा ना to do anything. And now he'll get even more because of how successful this movie is. And it'll do good उसको at उसके awards बिग also. मूवमेंट्स का है ना इम्पैक्ट चाहिए ही चाहिए, बाकी कुछ भी ना हो, उसके बिग मूवमेंट्स पे अगर इम्पैक्ट नहीं होगा सब तो मार्क्स थिएटर है. में बैठ के से देखता है ऑडियंस इसको कि कोई रिएक्ट कर रहा है कि नहीं वो मूवमेंट, और वो मूवमेंट पे किया ना रिएक्ट, वो खुश हो जाता है, बस अब अगला मूवी बना रहा हूँ मैं, खत्म। नहीं मेरे को कुछ तो बट अब भी सोचा था interesting. आई थिंक, Oh yeah, this one thing like even this for this movie एक second hold कर मैं आया. Just pause for a second. you had an Sorry. important thought, so I hope you didn't forget it. I don't think I even remember. हाँ, no, I was just saying कि for this movie within the first 10 minutes I could tell I'm not gonna like this a lot. Oh, okay. Yeah, I just you had get that a, feeling. either you're on board or either Sometimes, you're no, say, most movies are in between. You're just enjoying. Sometimes you get a हाँ, very positive feeling. कि, oh fuck, this is. I know I'm gonna love this. बिल्कुल And बिल्कुल, that happened with me in that you're the worst person in the world. First 10 minutes, wow, I'm in. damn, not the Yeah. example I expect. I can't think of a recent example. Recent है वो, that's why. Oh wait, let me think. Oh, अरे मैं अभी recently. हाँ, and then for this, I didn't get like it's a bad movie, but I could tell कि ये tonally मेरे को नहीं जम रहा. It's all about the tone, bit. It's not even. It doesn't have. I don't know how to judge that. Yeah. I But understand. Like मैं अभी what? वो देखा रे 310 to Yuma देखा मेरे फ्रेंड्स के साथ. तो बहुत Oh. स्लेप्ट ऑन है, कितना अच्छा मूवी है. Hard slept, bro. Christian Bale is so good, dude. And मूवी Russell टॉक्स Crowe है अबाउट ना, I दिस. think. हाँ थोड़ा एक दो उसमें डम चीज है बट ओवरऑल इट मेक्स अप फॉर इट. तो उसके उसमें मेरे को फर्स्ट 15 मिनट्स में आई वाज लाइक वाओ आई रियली लाइक आई डोंट केयर इफ इट्स द बहुत वर्स्ट फन है. थिंग इन द वर्ल्ड. Dude, I want to see more Christian Bale movies, you know, honestly, मैंने बहुत कम देखी है. आई थिंक रसल क्रो इज बेटर इन दैट. Yeah, but बट like उनका मेरे लिए वैसे Christian Bale is novelty. बैटमैन जोकर डायनामिक ऐसे मीटिंग ऑफ द माइंड्स रहता है उनका. बहुत सही है, नहीं बहुत सही है. It's a very आई कुड टॉक अबाउट दैट मूवी अ लॉट डिस्पाइट इट्स नॉट. Tarantino-esque, Tarantino feel आ रहा था मेरे को थोड़ा बहुत उसमें. I've इन seen इट it a वाज बेटर. long time ago. इट Like हैड अ मेरे लॉट ऑफ कैरेक्टर डेप्थ. भाई के साथ देखी होगी, मतलब बचपन में स्कूल डेज में देखी है मैंने ये. या नहीं वो बट सही. आई स्टिल रिमेम्बर द इम्पैक्ट, मतलब मस्त मूवी है. हाँ, उसमें इतने डम चॉइसेस है बट एट द एंड यू आर लाइक वेरी सेटिस्फाइड बिकॉज द दो सेंट्रल कैरेक्टर्स का ये मेक सेंस. बाकी एवरीथिंग अराउंड हिम इज थोड़ा स्टूपिड कि हाँ व्हाई इज like I don't know if you remember the specific, but basically Russell Crowe gets caught and they're transporting him to jail. But the reason he gets caught is complete bullshit. He could have just left, but उसको फर्क ही नहीं पड़ता ऐसे दिखा है. Like why would you do like you would just run away. तो ऐसे हाँ एक दो हाँ. दम चीज है, but then उनका डायनामिक इतना कि you end up satisfied. And then Oppenheimer में Yeah. ऐसे कुछ सेंट्रल डायनामिक ऐसे कोर ही उसका नहीं है, तो you don't get that ऐसे satisfaction only of having seen something ऐसे हो गया. Yeah. और एक और फोरशैडोइंग था, मतलब वो रिपल्स जो शुरू में देखता है वो पानी वो में तेरा यंग, रिपल्स का ऑब्सेशन है वो सब जगह वो एंड देखता है में भी तो. देखता है, एंड में भी देखता है जब वो डायलॉग बोलता है ना. हाँ एंड में तो वो बहुत ऑब्वियस है. सेम, बहुत ऑब्वियस है, तो वो एंडिंग भी. अच्छा, लास्ट सीन अच्छा था. आइंस्टाइन अच्छा था. आइंस्टाइन बहुत अच्छा था, और एंडिंग का सीन बहुत पावरफुल था. लाइक बहुत आई अच्छा कुड था, लिटरली एंडिंग का सीन ऐसे, था. एंड क्रेडिट्स आए ना, सब बैठे हैं, कोई ऐसे तुरंत उठ नहीं रहा है, सब हाँ बैठे हैं ब्रो. ऐसे एंड 2 मिनट सब सब डाइजेस्ट किए क्या हुआ वो. वो पूरा अच्छा था कि मे बी दे वर टॉकिंग अबाउट सम. आई न्यू ही वाज गोना एंड विद दैट कि मेरे को पता था कि क्योंकि मैं फर्स्ट फिल्म में देख लिया कि स्ट्रॉस तीन बोलता है कि चार बार आई मेंशन नो करता है रहता है यार वो. आई नो दैट बिचिंग अबाउट मी. मेरे को पता था हाँ एंड में वो ही इज गोना रिवर्ट बैक एंड दे वर एक्चुअली टॉकिंग समथिंग एल्स ओनली. ये होने वाला है. एंड आई वाज वेरी हाँ सैटिस्फाइड दैट इट हैपेंड कि उसको हाँ. लगता है उसके बारे में बात करे बट दे आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट लाइक हाउ द चेन दे हैड रिएक्शन. मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स टू टॉक अबाउट. हाँ way more important than that. वे मोर इम्पोर्टेंट. And उसको जो गिल्ट ये लगता है. I still didn't like the end credit music though. Like as soon as ऐसे end हुआ and Oppenheimer popped up,
जैसे एक मोमेंट रहता है ना, शिट ऐसे इन क्रेडिट्स, वो ऐसे जमा नहीं उसमें. अच्छा. I think everyone liked the score, but I think I would have still preferred a Hans Zimmer score on this. क्या बात कर, आई थॉट ही डिड अ वेरी गुड जॉब. मतलब मेरे को भी पसंद आया. लाइक आई नो हांस जिमर इज द क्लासिक नोलन, I'm in the बट minus 100%. हाँ, आई गेट इट. इसका बहुत ही वियर्ड था डूड, वेरी वेरी अनसेटलिंग, I think that's what he ऐसे wanted, but एंग्जाइटी इंड्यूसिंग. टेनेट में भी काइंड ऑफ ऐसे, टेनेट का टेम्पलेट है इसमें, बट इसमें उसने थोड़ा सा ऐसा रेडियो एक्टिव चीजें ऐड कर दी है. हाँ आई कांट इवन डिस्क्राइब इट. मेरे को जमता नहीं लुडविक का, बट ऐसे बिकॉज इट्स नॉट म्यूजिकली, ऐसे मैं कभी सुनेगा नहीं. हांस का मैं खुद से सुनेगा गाना कभी, इंसेप्शन का टाइप हांस का ज्यादा सिम्फोनिक है ना. हांस सिम्फोनी इज का ज्यादा, राइट. मेलोडियस ज्यादा है. हाँ, Maybe, but the kind of movies he's had to do, maybe it couldn't have been like Oppenheimer. Maybe you don't want symphonic. या बट है ओपनहाइमर में शुरू शुरू के डेज में आई थिंक है थोड़े बहुत सिम्फोनिक पीसेस. बट या आई कंप्लीटली लाइक अंडरस्टैंड, उसका थोड़ा सा वियर्डनेस है लुडविक ने. बट इट वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर लुडविक टू डू दैट. मतलब मैं कोई भी और एक्सपेक्ट करता, बट ही मेड अ ह्यूज जंप ऐसे क्रिएटिवली. काफी अच्छा लीप है उसके लिए. तो नोलन बोलेगा तो क्या लोग आते हैं. कुछ भी करते. He, बट आई वाज थिंकिंग, हाँ क्या. technically he can ask for a specific actor and he gets it. Gary Oldman he got for like one, like he's Dude. one of the only people in the world who can do that now. Crazy. Did you hear the Matt Damon ka in an interview said a story basically? I don't know if you heard this, but Matt Damon I kind haven't. of semi-retired from acting, और वो marriage counseling में था, and his wife and I were like discussing he wanted to take some time off from work and focus on family and all of that stuff. And even in the counseling thing, apparently this is a true story. Matt Damon says way before this movie was announced and anything, like the only thing, only exception is if I'm in a Chris Nolan movie, I'll do it. Otherwise, I won't do it. And then a few months later, he gets a call from Chris Nolan to be in this. Wow. He gets into acting. I don't Crazy. know, but it's pretty funny. या बट वही, अब मैट डेमन का तूने लाया टॉपिक ना, तो कैन यू जस्ट मतलब टेक अ मोमेंट टू रियलाइज मैट डेमन कितना सब डायरेक्टर्स के साथ ऑलमोस्ट काम किया हुआ है डूड. लाइक ही इज एवरीवेयर. और उसने कितना रेंज ऑफ जॉनर्स टैकल किया है. मतलब आई कांट इवन, मैं क्योंकि अभी जस्ट सेविंग प्राइवेट रायन भी देखा ना, तो आई थिंक मैट डेमन थोड़ा दिमाग में फ्रेश चल रहा है मेरे. बट तू मार्शियन देख ले, उसने मार्शियन की है. लाइक कितने So much better movie. कितने वैरायटी ऑफ रोल्स किए यार मैट डेमन ने. लाइक डिपार्टेड में भी है. मतलब But इसमें I will say उसका, I don't know, he didn't fit for me in this film. He was one of the few actors. बाकी everyone else I liked. इसके लिए they should have hired, मतलब obviously if you get Matt Damon you use him, no doubt उसका movie हाँ, stuff अलग, but for general ये ना they should have hired someone who was much more older and more menacing, who had a deeper. हाँ Matt Damon जनरल ग्रोव, क्या चल रहा है bro, ऐसे बोला मैं, like he didn't have that, because that guy was a very अथॉरिटेटिव वो ऑरा, intimidating. अथॉरिटेटिव ऑरा. हाँ, because he was reporting directly to the president पे, वो लेवल पे था वो उसका, and he was the guy in charge of that. And I don't know, मैं ये इसके पहले एक पॉडकास्ट भी सुना ओपनहाइमर का, and General Groves had a very ये reputation of being very disagreeable. He's the worst person you'll ever meet, and nobody liked him, and nobody wanted to hang out with him, and nobody like इसका ऐसे कभी easily नहीं होगा, but उसको कुछ काम दिया, he'll get it done. Like he was the most disagreeable yet the most reliable, because ये जब बड़े projects रहते हैं ना, the bureaucracy is huge in these things. So getting things done is a very political challenge. जैसे छोटे इसमें भी. So he was one of the few people who could take a project and actually get it done. And they weren't able to convey that at all. Like he was just some supervisor. So ऐसे छोटे छोटे characters के भी ऐसे signature ये थे that they didn't really ये. And his dialogue, he didn't get good line also. Like he's like, let's go recruit some scientists. Like ऐसे कौन बोलता है? लेट्स गो. 10 साल का प्ले दिख रहा है क्या? बेटर बोलना. ओह माय गॉड. बट ओवरऑल अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि क्रिस्टोफर नोलन की फिल्मोग्राफी में ना, लाइक प्रेस्टीज इज द मोस्ट नॉर्मल मूवी ऐसा लग रहा है. एवरी इंस्टॉलमेंट इतनी ऐसी वियर्ड बनती जा रही. क्रॉस कटिंग वर्क्स बेस्ट इन प्रेस्टीज. हाँ, बट प्रेस्टीज लिनियर है.
फिर No, भी it keeps काफी going back and forth. और वो डायरी पढ़ता है, फिर वो डायरी के फ्लैशबैक में जाता डायरी के फ्लैशबैक में जाता है. आई नो है. बट स्टिल But इट I इज. like that. उसमें मजा हाँ आता है. हाँ dude, Prestige is 9.5 dude. Prestige next level है. Greatest movie ever. But it doesn't. The same technique doesn't work here. बट उसमें है ना नोलन का जो नोलन इन्वॉल्वमेंट है ना वो सबसे स्केल्ड बैक है ऐसे लगता है. इसमें प्रेस्टीज वर्क्स एज प्रेस्टीज में प्रेस्टीज वर्क्स एज अ मूवी. because it no you think मतलब because उसका इन्वॉल्वमेंट इतना ज्यादा है कि you don't see outside of it. हाँ मे बी. It is everything that he does. और तो उसके बाकी मूवीज देखें and you rewatch Prestige, he's like, oh इसने ये मूवी में किया ये. Obviously when you're watching the first time you can't notice that because the story is so involving. या But when you think about it, it's like every trick in the book he's using there. But obviously it was early in his career and stuff. So अरे एक और इंटरेस्टिंग चीज. आई वाज वाचिंग दिस नर्ड राइटर का फ्यू वीडियो एसेस ना. हाँ प्रेस्टीज का भी है उसका. नहीं उसने टैरेंटिनो पे भी रिसेंटली किया है. एंड ही मेंशन्ड व्हाई टैरेंटिनो इज ओनली गोना मेक 10 फिल्म्स. हाँ ही वाज टैकलिंग दैट टॉपिक कि व्हाई हाँ why someone like Tarantino, who has all the all the all the resources, literally all the creative freedom, and still like people would beg to be in that position their entire lives and they wouldn't be. And why is he making? तो उसने over OEVRE करे कुछ तो एक वर्ड बताया which is basically body of work. हाँ over. over. तो Tarantino works in overs, मतलब which he believes कि if one film is bad in the filmography, it affects the filmography. Right. It affects other films. Other good films are also affected Right. if a film is bad in his filmography. Right. And वैसे and उसके हर एक फिल्म में एक ऐसे ओवरआर्चिंग लिंक या वैसी वाली चीज है. Obviously दो मूवी बहुत ऑब्वियस है, इंग्लोरियस बास्टर्ड्स एंड वंस अपॉन अ टाइम वेयर इज रीराइटिंग हिस्ट्री. Right. दोनों में तो मतलब बट स्टिल ही हैज लाइक ऐसे चीजें कि बॉडी ऑफ वर्क वाला थिंकिंग. आई थिंक नोलन का भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये चीज, बॉडी ऑफ वर्क वाला थिंकिंग. बिकॉज एवरी मूवी प्लेज विद द लिनियरिटी ऑफ द स्क्रिप्ट लिटरली. मतलब I don't think he's going for the body of it. That's just how he some way. likes making movies, and he makes every movie the same way Why? because that's his style. अरे ऐसे नहीं होता ना. वेस एंडरसन का सिमेट्रिक एंड प्रिटी कलर स्टाइल है. तो वेस एंडरसन का भी बॉडी ऑफ वर्क वाला थिंकिंग है. देख तू स्कॉर्सेसी का देखेगा ना, वो बहुत स्विच अप करता रहता है. स्कॉर्सेसी स्विचेस अप. स्पीलबर्ग आल्सो हैज अ डिस्टिंक्ट ये बट वो भी करता है. हाँ तो दे अडेप्ट. ऐसे में कुछ मूवीज देख के तो अरे ब्रो ये स्पीलबर्ग ने कैसे बनाया ये नहीं लगता है, बट इट इज मेड बाय मैन एवरीथिंग. मतलब घोस्ट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट तो अभी तक आया नहीं है तो तो बट लाइक नोलन नोलन का ऑब्सेशन है ब्रो उसका बॉडी ऑफ वर्क लेके. एंड ही इज गोना कीप मेकिंग वैसे ही, क्योंकि उसका एक ओवरआर्किंग जब वो उसका डेथ बेड पे होगा खत्म कर देगा, सब देखेंगे ओ माय गॉड लुक एट हिज वर्क द टाइम. नहीं बट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. आई ये बॉडी ऑफ वर्क ये कहां से आया? बिकॉज़ इफ उसका तो डेब्यू देखेगा ना फॉलोइंग, उसमें भी लिटरली उसने ये किया है. हाँ but that's what I'm saying because he's not thinking about body of work perspectives. He just likes making movies that way, so he picks those projects, and he just keeps making every movie without thinking about the larger whole. बट तू कितना वियर्ड है देख, उसने हिस्टोरिक मूवी की है, उसने साईफाई किया है, उसने सुपर हीरो किया है. मतलब ही हैज लिटरली डन ऑलमोस्ट. और तू देखिए ना उसका है ना क्यूब्रिक टाइप फुटस्टेप्स है काइंड ऑफ. लाइक इंटरस्टेलर वाज इज 2001 स्पेस ओडिसी. वैसे ओपनहाइमर आई गेस बैरी लिंडन के साथ तू कंपेयर कर सकता है. मतलब उसने हर एक वैसे जॉनर को टैकल किया है जो आई थिंक प्रेस्टीज और क्लॉकवर्क ऑरेंज डजंट वर्क एट ऑल. बट या वॉर मूवी है उसकी एक क्या है वो जैकेट, फुल मेटल जैकेट है. Okay. वैसे डनकर्क भी इसने एक वॉर मूवी भी करी है क्यूब्रिक वे में थी. क्यूब्रिक लिटरली ऐसे एक जॉनर लेता था और उसको पूरा अपने वे में स्पिन करके प्रेजेंट करता था. बट स्टिल उसके कुछ ऐसे नहीं था कि एक सिग्नेचर स्टाइल था कि ओ क्यूब्रिक बना रहा है तो वो ऐसे ही बनाएगा. अभी नोलन ने हॉरर नहीं किया है. दैट्स द वन थिंग जो वो बहुत ऑब्वियस है जो उसने किया शाइनिंग, और इसने अभी तक नहीं किया है. विच विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि तू स्पेक्टेकल तो कर सकता है बट कैन यू लाइक लिटरली डू हॉरर विथ योर थिंग. राइट. बट तो मेरे को वही लगता है कि लाइक ही हैज सम
मतलब he's picking very wildly different genres, but he's making it the same way. Yeah. Why? Because Do you that's the think? only way he knows, and that's what he likes. इतना गंदा obsession, bro. Bro, it's like this is applicable across ये अभी what Kendrick Lamar rap albums ही बनाएगा. हाँ. He'll take थोड़ा कभी कभी jazz, he'll take थोड़ा trap, he'll take mainstream beats, he'll take whatever अभी क्या किया उसने. I mean similar ही था, but that begs the question है कि कभी नोलन कोई और मतलब यही है उसके पास कि कुछ और भी है. मतलब ही इज रिफाइनिंग हिज दिस थिंग वेरी वेल. ये अभी ओपनहाइमर में वो इतना रिफाइंड स्टेट में आ चुका है ना कि वो पूरे मूवी को वैसा रख के मेंटेन रख पा रहा है. लाइक इंसेप्शन का क्लाइमैक्टिक सीन को ये पूरा मूवी बना सकता है. तो उसने मैक्सिमम पे लेके आ गया. आई थिंक आई डोंट सी इसके आगे भी कुछ और बचा है. ट्रू. I feel like the next movie will be very different. It will be the same done. It will be done the same way because that is what he knows. अब क्योंकि अब मैं एक्सपेक्ट करके जाऊंगा. अब नहीं होगा. हाँ. तो how will it surprise? It's not like लोग हर रोज क्रिस्टोफर नोलन मूवी देख रहे. लोग साल में 30-40 मूवीज अगर देख रहे हैं. डार्क नाइट ट्रिलॉजी में वो चुप बैठा. डार्क नाइट ट्रिलॉजी उसने सीधे सीधे बनाई. I'm talking less about the non-linear aspect and more about his like general dialogue and directing style. सब Dark Knight में भी है ऐसे. Chris ऐसे dialogue रहता है 1-2 1-2 1-2 cut to next scene 1-2 1-2. हाँ. I don't know how to explain it, but if you watch all his, वो he doesn't let a scene breathe. I don't have that criticism in the Dark Knight, but yeah, in general, he knows it very well, like how to get the ball going quickly. हाँ, बहुत ज्यादा मूवमेंट है उसकी फिल्म में. Which it works in most cases, but I mean this is not a unique case. सबका style रहता है, and to get to that level where you're good at your style only it takes so long. कि कोई और style and to invest years of your life, like making movies is not cheap and it takes a lot of time. So I think he's refined his style to death abhi at this point. मतलब I think he's done it. Yeah, you can make that argument, but then you can make the same argument for Wes Anderson also. Wes Anderson has done it in French Dispatch. उसके आगे कुछ नहीं बचा है, bro. French Dispatch is mind blowing. मैं बोल रहा हूँ. This one, Asteroid नहीं देखा हूँ. मैं देखूंगा अभी ये वीकेंड या नेक्स्ट वीकेंड में ही. I have it downloaded 4K में 20 GB. Yeah. Is your screen resolution even 4K? हाँ, मेरा टीवी का ये रहा. Okay. I was like laptop 4K देख के क्या करते हैं? No bro, टीवी इसलिए मैंने लिया ना प्रॉपर. अभी 4K अभी प्रॉपर डिफरेंस आ रहा है. बट वही मैं बोल रहा हूँ कि एस्ट्रॉइड सिटी देख के मुझे ऐसा लगा कि अब दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू अंडरवेल्म मी, क्योंकि मैं फ्रेंच डिस्पैच देख लिया. और लाइक देयर इज नथिंग बियॉन्ड दैट. That is honestly possible. I can see that happening. अगर नोलन ने नेक्स्ट मूवी सेम किया ना तो फिर प्रॉब्लम आएगा. वही बात है. दैट्स ऑल आई एम सेइंग. No, but the thing is, उसका, but even Tarantino ने स्केल बैक किया रे. Tarantino ने अपना वायलेंस एकदम एंड के लिए बचाया Once Upon a Time. That's why Once Upon a Time was so palpable कि oh my god कभी भी कुछ भी हो सकता है. But we are on the edge. Finally रिलीज मिला. वो चलो वो completely different experience है, but he did switch up our expectations. मतलब उसने थोड़ा प्ले किया. हाँ bro. But you won't feel that because Nolan का choice of A is always amazing. मतलब he doesn't repeat his choices. Choice of topic and अच्छा topic. अभी वो biopic नहीं बनाएगा और like he'll tackle something else. Like he'll make another drama or sci-fi or something. Horror bro, horror बना दे, मैं खुश हो जाऊंगा. Try कर. Flop भी होने चलेगा. Try किया ना मैं खुश हूँ. ना, it takes time. That's the thing. So I don't know, but yeah, I mean, it's a good thing these people have their own style. हाँ, obviously body of work वाली चीज तो है ही. Dude, please watch Decision to Leave यार. वो पार्क चैन वोक का आया है, बहुत अच्छा है. हैंडमेडन के बाद नेक्स्ट मूवी आया है. हाँ, हैंडमेडन देखना चाहिए पहले. वो 9.0 है, हैंडमेडन 10 है. मतलब क्या क्या मूवीज बना रहा है ये आदमी. ओल्ड बॉय 9.5 है ब्रो. मतलब ही इज जस्ट मेकिंग बैंकर्स. ओल्ड बॉय को मैं कितना सुना हूं ना हर्ष एट दिस पॉइंट. You haven't seen Old Boy? Dude, I think देखो Old Boy से start करना चाहिए. Like this director will open up a new way of filmmaking for you. Yeah. Not even kidding. बहुत inventive.
अभी Decision to Leave इतने ये एज पे he has nothing to prove. He has already made classics. But इतनी inventive film is the most seductively beautiful film I've seen ever, bro. People made their decision not to leave the theater. Yeah. Yeah. No, I feel you. Decision to Leave is beautiful. Any final thoughts about Oppenheimer? Final thoughts. Sucks. No, man. I think I'll even like it even more the more I sit with it. Like it keeps on growing every single day. And every little detail that connects, I'm blown away. I'm enjoying a lot. मेरे को मतलब पूरा तेरा reason समझ में आ रहा है, but I don't want Nolan to be give me the same thing that has been like the same beats or the same I get it that it should be there if it's such an important topic and everything, but उसका जो उसने importance था वो I felt the nuclear importance I felt. वो final scene was impactful for me. I didn't want that to be the entire movie, but when it came, I know somewhere it was going to come, and when it came and the way it came, थोड़ा foreshadowed way में जो उसने movie में बहुत use किया foreshadowing tactics. बट वो आइंस्टाइन वाली चीज में और द वे इट केम वाओ इट हैड एन इम्पैक्ट आई एम ग्लैड इट वाज द लास्ट थिंग टू कम. तो मतलब मूवी को मैं छोड़ के जा रहा हूँ तो मैं लिटरली आई एम थिंकिंग मेनली अबाउट दैट. इज इंपॉर्टेंट या हाउ इट लीव्स यू. हाँ, सो इट लेफ्ट मी विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द होल थिंग, not the test or anything. Test happens literally 45 minutes before the movie ends, but the movie ends with the impact that world we are living in. So yeah, overall I really enjoyed it. Second time मैं देखने भी नहीं जाता अगर मैं first time enjoyment नहीं मिलता. And for a 3-hour movie, it's a big commitment, bro. Huge commitment. Yeah, this is the first significant disagreement we've had, like true, in a movie in a long time, for a movie where true. You liked it. But nothing is ill-founded. Like I don't see any of your disagreements like ऐसे कहाँ से आ गया ये और. Yeah, I get. Yeah, it's just at the end of the day, it's just fundamentally you just like something or you don't, and then everything else is just padding on top to justify it. Yeah, you rationalize problem or you don't. वैसे हो जाता है based on your overall enjoyment. It just didn't live up, and I overly criticized because I had expectations, but yeah, it just failed on some substantial level. I thought it was fun, and I will definitely watch it again in my life sometime. But yeah, definitely worth. Like the second time was so much more enjoyable because I could just literally watch the movie. First time I was like Nolan है, ये है, वो है, 10 चीज. But yeah, you're like a detective, like waiting for clues. Yeah, bro. Like I was trying to do so many things. मतलब the filmmaking perspective से देखता है. मैं इतना hard नहीं जाता, मैं ज़्यादा ऐसे chill में रहता है. I know, but it's like something that I can't even control. वो हो ही जाता है. It's like जैसे one weird thing that happens to me in mystery, मतलब ऐसे Knives Out वगैरह वाली movies में, I'm not trying to figure out at any point. I'm just watching it and enjoying the ride. But many people like around me, बहुत सारे examples हैं friends के जो they're like at every point they're trying to figure out and trying to be one step ahead of the director. Yeah. And if they figure it out or if they get disappointed in what they were thinking, they will feel a different way वगैरह. मेरा ऐसे कुछ नहीं था. I'll just go for the ride. उसके बाद मैं सोचता okay ये तो था पहले था वगैरह. But I usually turn that off. Like I don't know how it just turns off. Yeah. But Tarantino, Nolan, ये सब नाम देख के मेरा दिमाग है ना. Yeah. I can't even watch it. Prime हो जाता है to have a certain. बहुत ज्यादा. I can't even literally the first viewing is not a viewing at all. ऐसे हो जाता है. Just once upon a time मेरे को first viewing के बाद I was just like surprised क्या हुआ ये movie में क्या चल रहा था ऐसे था. Yeah, I'll end this at least recording on by saying I feel like वो जो interrogation scene है ना जिसमें वो bright light उस पे आते रहता है मेरे को अभी वैसे लगता है because of the light coming from the window and stuff. Like, horrified. Oh shit.